I, R.P. Bhardwaj, convener of NAGAR PURAM CP Study Circle, welcome all the participants in today's seminar. Today we are assembled here in this webinar to discuss a very important topic, recent issues in GST, issues of fake invoice. It will be taken up by CA ABHISHEK Raja ji. I request our founder convener, R.K. Gupta ji, to formally introduce the speaker and start the proceeding. R.K. Gupta ji, over to you, sir. Thank you very much, R.P. Bhardwaj ji, and our speaker for the day, Abhishek Rajaram ji. CA Abhishek Rajaram ji is a fellow member of ICAI. He qualified this coveted exam in 2006 and he holds master's degree in commerce also. Having more than 15 years of experience in litigation, in indirect taxes, VAT, service tax and excise laws, he has appeared at various appellate forums. He is also speaker on VAT, service tax and GST and has deliberated in many seminars and webinars on various CP study circles, taxation bar associations, other associations, web portals like CA Club India, Study Cafe, Clear Tax, Corporate Talks, Global Chamber of Professionals, Federation of Indian Professionals, e-tax, etc. He has already authored 9 books on GST. Besides that, his articles have been published in various magazines, websites, and newspapers like Statesman, Economic Times, Pioneer, Hindu Business Line, etc. He is also radio and TV debate panelist. He is also founder of www.gstpanacea.com. So with such an illustrious background and the topic for today's session being recent issues in GST, including issue of fake invoices, bail, arrest, etc., various provisions, we have invited him to deliberate on the subject. The duration is 2 hours, so this program will be up to 6 p.m. As you must already be knowing that we have our own YouTube channel also. So in case you have not subscribed to our YouTube channel of NAGAR PURAM CP Study Circle, you can subscribe to it. Thank you very much. With this, over to Abhishek Raja ji, our speaker for the day. Abhishek Raja. Thank you, R.K. Gupta sir, and thank you, Pradeep sir. And it's always an honor to be on the platform of NAGAR Study Circle. Thanking you for this opportunity. So the topic is recent changes, but let's go forward. What is the issues? So fake invoices in ITC. आज की में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है, डिपार्टमेंट हर चीज पर ये कह रहा है that you have taken fake invoices. Though there could be a cases where they are genuine invoices and the registration of the person has been cancelled later on. But let's go ahead and how we have to counter this. So first thing is that every day you must be seeing in news paper, news channels, on social media कि कुछ लोगों को रोज पकड़ लेते हैं. And the amount which they give is substantial amount. Now, for example, of this case, they are saying that so what is the GST collection per month? It's an average of 1 lakh crore rupees per month. Now, 1 lakh crore collection कर रही है government, which includes everything. State का भी पैसा है, center का भी पैसा है, customs duty, import and everything. Now, total what they are saying that last year they have arrested 426 persons and they have arrested chartered accountants also. And total amount was 35,000 rupees, which is a very substantial amount. And in this fiscal year, so April, May, June, July, they said that around 35,000 rupees. And then
फॉर एग्जाम्पल कल भी एक न्यूज आई 13 करोड़ का पकड़ा गया रिफंड स्कैम फ्रॉम लुधियाना. And they are saying that Surat and Ludhiana are two prominent hubs for these kind of fake invoices. Now, when we read about this, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें, तो न्यूज को पढ़ते वक्त ध्यान रखिए, they would be saying that this is the loss, but अगर आप ये देखें, ये क्या है? 360 degree profiling. Now, this is one thing which we have to take care कि ये कह क्या रहे हैं? What does it mean? What does this mean? ये क्या कह रहे हैं 360 करोड़ 360 डिग्री का क्या प्रोफाइलिंग है? So now we will discuss. They have created a software with artificial intelligence which has been linked with the GST server, जो एक आइडिया देता है to intimate करता है to the officer that these are the cases which could be involved in fake invoicing. Now, how this software will work, we will discuss this. And then एक और न्यूज आई where they said that they have arrested a person. ना पहले क्या था, जिसके अकाउंट्स में बिल्स आए हुए उसी को पकड़ा जा सकता था. They have amended the positions and with this finance year budget, Finance Act 2021, they are targeting kingpins also. कि जो खुद की बुक्स में कुछ नहीं कर रहे, those who are involved or those who are basically the mastermind of these kind of things, उनको अरेस्ट करने की बात यहाँ पर आई. And this is the news where they say that undervaluation of goods have been transported. And again, the name of Ludhiana and Jalandhar is here. Now, I read a news last year, almost इसी तारीख के आसपास की न्यूज थी. The government said that they are trying to invoke COFSA against the offenders. Now, this was new thing for me also. कि GST invoice अगर fake rate है, तो ये कौन सा कानून आ गया? And what are the implications of this law? ये हेडलाइन पढ़कर मेरे भी दिमाग में कुछ आया कि इस लाइन का मतलब क्या है? And then when I read about it, so this is for conservation of foreign exchange and prevention of smuggling activities. Now, my thought process was कि fake invoices से smuggling कैसे हो गई? Fake invoices से smuggling कैसे हो रही है? This was my first question. And how this is being taken care of? तो सबसे पहले मेरे समझ में आया कि fake invoices से ये गड़बड़ कैसे होती है? What they said was that the person के पास, for example, he is exporting goods और उसका एक्सपोर्ट 100 रुपीज का है, लेकिन वो 100 रुपीज का एक्सपोर्ट ना करके 1000 रुपीज का एक्सपोर्ट दिखा देता है. एंड उसका 10 रुपीज का आईटीसी था, वो आईटीसी ही 100 रुपीज का दिखा देता फेक इनवॉइसेस के थ्रू. फेयर एनफ, एक्सपोर्ट एलयूटी पर हो गया without paying any taxes, and he claimed refund of 100. Government issued refund of 100 rupees, और वहां से उसको फॉरेन से जो पेमेंट आना था वो तो 100 ही आना था. रेस्ट 900 रुपीज वो बैड डेट्स में डाल देता है. Thus he has cheated the government. और इसी में जो अभी रिसेंट में अरेस्ट हुई है, जो मैं भी लुधियाना की बात कर रहा हूं, उसमें ये जो मैं लास्ट ईयर के प्रोविजन से नवंबर के जो मैं डिटेल दिखा रहा हूं, ये बेंगलोर की थी. बिल्कुल सेम ही न्यूज आई है फ्रॉम लुधियाना, वेयर एक्सपोर्ट गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी हैज बीन डिटेक्टेड कि वो इस तरह की गुड्स भेज रहे थे बाहर ऑन मेकिंग हायर आउटपुट वैल्यू. Now, when you see these reports, अगर आप डेली की जो न्यूज आती है, अगर आप इन रिपोर्ट्स को देखें, they are very clear on what is the total amount of ITC that has been done in fraud.
For example, this is a case where they say that 143 crore rupees was the total billing and total fraud involved was 25.74 crore rupees. And they have provided name of the companies also. Avia Enterprises, Ariti Engineering Contracts, Sri Krishna Castings. और ये भी बता रहे हैं किस कंपनी से कितने की फ्रॉड हुई है. The total amount was an unutilized evaded taxes this much this crore. Now there is a problem in this also. First thing, there are certain people who have been authorized by the department, legally authorized to give a press release. लेकिन होता यह है कि जो पार्टी अरेस्ट कर रही होती है वही सेम डे प्रेस रिलीज इशू कर देती है, which is against GST laws also. The best part is जिस दिन वो अरेस्ट करते हैं उस दिन शाम को वो बता देते हैं that this person has been arrested and he is running this farm. This amount is the fake ITC and this is the total amount. And as per the law, जब हम अभी देखेंगे, they have to submit a file, a charge sheet within 60 days. और ये डिटेल तो उनके पास पहले दिन ही होती है शाम को जब अरेस्ट कर लेते हैं. बट प्रैक्टिकली कई केसेस में एक साल तक चार्जशीट फाइल नहीं हो रही इवन आफ्टर अरेस्ट. दिस मीन्स ये जो भी कुछ ये इशू कर रहे हैं वो सही नहीं है. एंड लास्ट ईयर लॉकडाउन में जाने से कुछ दिन पहले ही एक न्यूज बर्स्ट हुई कि 7,896 करोड़ रुपीस का फेक इनवॉइस का स्कैम वेस्ट दिल्ली में बर्स्ट हुआ. ना पूरे दिल्ली का इतना कलेक्शन ही नहीं है जीएसटी का जितना ये कह रहे थे कि एक स्कैम बर्स्ट हुआ है. एंड ये फिगर्स हर साल बढ़ती जा रही हैं. आज से 2 साल पहले दिस फिगर वाज 15,000. टुडे फॉर 2020-21 इज इट 35,000 और 35,000 करोड़ रुपए. और ये इसी तरह फिगर बढ़ती जा रही है, लोगों को अरेस्ट हो रहे हैं बट सॉल्यूशन कहीं नहीं मिल रहा. ये स्थिति ज्यादा बिगड़ गई देन लॉ कमिटी. देयर आर 2 मेजर कमिटीज इन जीएसटी काउंसिल. वन इज द फिटमेंट कमिटी which provides which finalize the rates, which suggests the rates of GST, and the second one is law committee which provides changes, which recommends changes in laws or a new compliance. So अभी जैसे आपने न्यूज में पढ़ा होगा फिटमेंट कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है जो 27 यानी कल की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में फाइनल हो सकता है दैट जीएसटी रेट्स कुड बी मर्ज. सो जो 3% है सिल्वर एंड गोल्ड पर दैट कुड बी इंक्रीज टू 5% एंड 12% एंड 18% के रेट मर्जर की बात हो रही. और जो 28% है इट कुड बी टेकन टू 30%. तो 12 एंड 18% रेट को अगर मर्ज करेंगे तो दे आर सेइंग दैट वी विल गो विद 17 और 16%. मतलब अगर 12 एंड 18 का भी एवरेज निकालूं तो इट शुड कम 15. So this all are done on the recommendation of fitment committee, but now we are discussing law committee. The question before law committee was that this fake invoices menace is growing daily. So how we have to take care of it? And therefore, what they recommended was that GST should adopt an Aadhaar-like registration process with online live photographs and use of biometrics with due verification of the document. So this was first thing, and second, they recommended some sort of cash payment, for which they came with Rule 86B. The Rule 86B was introduced this thing, and earlier before this meeting of this GST Council, जो मैं आपसे बता रहा हूँ, इससे पहले जो बात हुई थी, they introduced Rule 86A. So basically, the law committee suggested 3 types of actions: Rule 86A, Rule 86B, and third is biometric verification. Now, biometric verification is still not in process, but Aadhaar-linked registrations are in process. The major problem with what this recommendation did was, now it has changed the views of the department while registering, while providing you registrations.
एंड दैट इज द रीजन कि शायद आपके भी किसी क्लाइंट के पास जीएसटी नया रजिस्ट्रेशन कराते वक्त कोई ऐसी नोटिस आ गया होगा, कोई ऐसी चीज मांग ली गई होगी विच यू फील कि यार ये तो बहुत खराब चीज मांग ली है, ये मांगनी ही नहीं चाहिए थी, एंड फिजिकल वेरिफिकेशन एक तरह से बढ़ गया है, एंड ड्यू टू दिस मीन्स वी हैव टू ऑपलाइज द डिपार्टमेंट ऑल्सो. आई कैन नॉट से मोर देन दिस. आप बात समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ. तो बट अगर किसी आदमी को, क्लाइंट को अरेस्ट कर लेते हैं तो हमें क्या नुकसान है? हाउ आर वी रिस्पॉन्सिबल? अगर कोई क्लाइंट फेक इनवॉइसेस में अरेस्ट भी हो गया तो हमारे को क्या फर्क पड़ रहा है? Now, देखिए, there is a permanent loss to reputation of the person and of the client, of the professional also. परमानेंट लॉस क्यों है? फॉर द पर्सन. अगर किसी आदमी को अरेस्ट कर लिया, देखिए डिपार्टमेंट क्या है, इंडस्ट्री पर अटैक करता नहीं है. जो 10,000 20,000 करोड़ का जिनका टर्नओवर है, फॉर एग्जांपल भारती है, टाटा है, इनको तो कभी भी डिपार्टमेंट टारगेट करेगा नहीं. बहुत छोटा क्लाइंट है जिसका 20-25 करोड़ का टर्नओवर है, उसको भी डिपार्टमेंट टारगेट नहीं करता. डिपार्टमेंट टारगेट कहाँ करता है? A middle-aged businessman having turnover of say 100 to 500 crore rupees, और यहाँ पर इज्जत खत्म हो जाती है. मान लीजिए कोई क्लाइंट है, उसके घर से आकर डिपार्टमेंट वाले उसको अरेस्ट करके ले गए, तो उसमें जो पिछले 20 साल में 30 साल में, सोच कर देखिए 50 साल का एक बिजनेसमैन है, जो उसने 30 साल में इज्जत कमाई है, जो हो सकता है उसकी फैमिली की इज्जत रही होगी, सेकंड थर्ड जनरेशन ऑफ द बिजनेसमैन है, तो वो एक बार अरेस्ट होने के बाद इज्जत खत्म हो जाती है या काफी डैमेज हो जाता है. सेकेंड, एज ए प्रोफेशनल हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि भाई सीए साहब भी इन्वॉल्व होंगे. कई केसेस में डिपार्टमेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी साथ में नोटिस भेज देता है, और कई जगह तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी अरेस्ट किया जा रहा है साथ साथ बिजनेसमैन. नो, एक और प्रॉब्लम ये आती है दैट व्हेन वी टॉक अबाउट अरेस्ट एंड बेल, तो अरेस्ट हो गया, उसके बाद जो बेल करानी है वो तो लॉयर को करानी है. हमारा काम तो यहां से आगे बढ़ता ही नहीं. लेकिन जो लॉयर होता है, दे आर गुड इन क्रिमिनल केसेस, दे हैव मोर एक्सपोजर टू दोज थिंग्स, दे आर नॉट वेल वर्स्ड विद टैक्सेशन पार्ट या जीएसटी के बारे में उनकी उतनी नॉलेज नहीं है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट 2019. किसी को अरेस्ट कर लिया गया, एंड आई वाज सिटिंग देयर, किसी लॉयर से बात कर रहे थे उसको बेल दिलाने की, एंड देन द क्वेश्चन ऑफ द लॉयर वाज कि मैं सारी बात समझ गया आपकी, लेकिन मुझे टैक्स इनवॉइस और फेक इनवॉइस में डिफरेंस बता दी. सो देयर इज ए प्रॉब्लम. देखिए, अगर कोई पर्सन अरेस्ट हो गया तो उसकी फैमिली बट नेचुरली टैक्स प्रोफेशनल के पास आएगी कि साहब आप ही जीएसटी का काम देखते थे, आप ही इसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, आप ही इसके ऑडिटर हैं, आप ही कंसल्टेंट हैं, आप इनको बाहर निकलवाइए. नाउ व्हेन यू और या उन्होंने को रेकमेंड कर दिया कि ये हमारे लॉयर हैं, या तो आप पर जिम्मेदारी आ जाती है टू अरेंज सम लॉयर, वो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ढूंढते हैं. अदरवाइज क्या है, इफ दे हैव प्रोवाइडेड यू सम लॉयर, then you both are sitting on a different platform. उन्हें अरेस्ट होने के बाद बेल तो पता है, लेकिन उन्हें जीएसटी नहीं पता. हमको जीएसटी अच्छे से आता है, हमें बेल प्रोविजंस नहीं पता. दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हमें किस तरह के आर्गुमेंट्स देने चाहिए. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अरेस्ट कहाँ पर होती है, देन वी विल गो डीप. सो दिस आर द, सो अमाउंट इवेडेड के ऊपर या आईटीसी गलत अवेल कर लिया या आपने रिफंड गलत ले लिया, देन उसके हिसाब से पनिशमेंट चलती. नाउ इफ इट इज लेस देन 1 करोड़, फिर तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है. अगर आपने जो अमाउंट इवेट करा है, सेक्शन 132 में चलते हैं सारे ऑफेंस. सो 1 करोड़ के नीचे है, आपका अरेस्ट नहीं होना. 1 करोड़ के ऊपर है बट लेस देन 2 करोड़, वुड बी अरेस्टेड.
द पनिशमेंट कुड बी मिनिमम 6 months है सब चीजों में एंड मैक्सिमम 1 year विद फाइन. नॉन कॉग्निजेबल है एंड बेलेबल. नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल को हम बाद में डिस्कस करेंगे. 2 crore to 5 crore है, मैक्सिमम 3 years, मिनिमम 6 months. मोर देन 5 crore है, मैक्सिमम पनिशमेंट इज 5 years. तो या देखिए किसी ने 5 करोड़ की चोरी करी, 50 करोड़ की चोरी करी और से 500 करोड़ की टैक्स चोरी करी. In all three cases, the maximum punishment is of 5 years. And this is also a problem. Because now they are not distinguishing कि भाई छोटा है, बड़ा है, maximum 5 years. ये एक तरह से अच्छा भी है because when there is a maximum 5 years, तो it is less than 7 years. अब ये 7 years कहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ ये हम आगे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. How this is beneficial and how this helps you in getting bail. Now, issues any invoice or bill without supplies, again 1 year के नीचे अरेस्ट नहीं होने, 1 से 2 year में मैक्सिमम 1 year, 2 से 5 years में मैक्सिमम 3 years, 5 साल पर 5. Now this is for और इसमें एक चीज और है, अगर आप गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं then again it goes to 6 month penalty, 6 months with fine. और इट कुड बी 6 months विदाउट फाइन अगर आपको सम्मन आते हैं और आप कोई गलत जानकारी डिपार्टमेंट को देते हैं. और इन केस यू स्टॉप्स पर्सन डिपार्टमेंटल ऑफिसर डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी. ये पीवी रमन्ना रेड्डी तेलंगाना हाई कोर्ट में ये केस यूज हुआ है जहां पर ये क्लॉज वाली ये वाली क्लॉज यूज करी गई, ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट एनी ऑफिसर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी. नाउ ये तो सारा ठीक है, बट इन केस इट इज अ रिपीटेटिव ऑफेंस, जो लिमिट है 1 year, 3 year, 5 year और 1 crore, 2 crore, 5 crore की जो लिमिट है, ये तब भी रेलेवेंट है जब आपका फर्स्ट ऑफेंस हो. इन केस यू आर कंसिडर्ड टू बी हैबिचुअल ऑफेंडर और ये आपका अगर सेकंड ऑफेंस है तो फिर इस पर कोई लिमिट नहीं लगेगी. इवन फॉर से 1 rupees you could be arrested and maximum penalty could be. जो बेल है, बेल हमें मिलेगी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 CRPC with linking with it CGST Act section 132. देखिए 5 करोड़ से नीचे का क्राइम है, मतलब आप पर चार्ज है, देन इट इज बेलेबल एक्सेप्ट फॉर रिपीटेटिव ऑफेंस, जो मैंने आपसे बताया. अगर सेकंड बार गलती करिए या एक से ज्यादा बार अगर होगी. मोर देन 5 करोड़ नॉन बेलेबल. नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं है कि बेल नहीं मिलेगी. नॉन बेलेबल का मतलब होता है, देखिए अगर आपका ऑफेंस बेलेबल है, बेलेबल का मतलब है बेल इज योर राइट, बेल इज योर राइट एंड द ऑफिसर हु हैज अरेस्टेड यू ही विल ग्रांट यू बेल. और इसमें कोई एडिशनल कंडीशन नहीं लगाई जा सकती. अगर आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अगर आपका नॉन बेलेबल ऑफेंस है, देन जिसने अरेस्ट करा वो आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगा और आपकी जो बेल होगी वो मजिस्ट्रेट देगी. अब ये जो बेल मिलेगी आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस में, ये हमेशा कंडीशनल बेल होगी. कंडीशंस क्या लगाएंगे, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है. डिस्क्रिप्शन का मतलब इसके भी खैर कुछ चीजें हैं कि क्या क्या वो डिस्क्रिप्शन लगा सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस लगाई जा सकती है. बट मोटा मोटा समझ लीजिए कि कोर्ट की इच्छा है वो आप पर से ये बोले कि आप you give provide security of say 10 lakh rupees, or they might say that you provide security of 1 lakh rupees or say 50 lakh rupees. So that is discretion of the court. That is discretion of the court, and the conditions could be, so this would be always be conditional. Conditions could be that you have to surrender your passport, say आपको weekly पुलिस थाने में जाकर साइन करना होगा, बताना होगा कि मैं शहर छोड़ के नहीं गया, फोर्टनाइटली जाना होगा या मंथ में एक बार. And while granting bails in non-bailable offence, court has to ensure that for the trial purpose you would be available. ऐसा ना हो कि आपको बेल दे दी और आप कंट्री छोड़कर चले जाओ.
इसीलिए सबसे पहले जब बेल दी जाती है तो सबसे पहला काम आपका पासपोर्ट सरेंडर करवाया जाता है, एंड देन मोस्ट ऑफ द टाइम दे आस्क कि भैया 2 ऐसे पर्सन्स के नाम दो, दोज हु आर रेपुटेटेड पर्सन, और उनके नाम की श्योरिटी दे दो। कई बार कोर्ट अमाउंट की भी बात कर लेती है कि आपको एक्स अमाउंट डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। There are basically 3 type of bills. One is regular bail, anticipatory bail, and interim bail. Now, anticipatory bail is जब आप एंटिसिपेट करते हो कि मुझे कोई अरेस्ट कर लेगा, the department is going to arrest me. Now, please provide me anticipatory bail. Now, for example, someone has got a summon from the department. Summon के अगेंस्ट उस आदमी को लगता है कि मेरे को, मैं सम्मन में डिपार्टमेंट के सामने जाऊंगा एंड डिपार्टमेंट विल अरेस्ट मी। तो डिपार्टमेंट क्या करेगा? वो क्या करता है? वो हाई कोर्ट को अप्रोच करता है, प्लीज प्रोवाइड मी एंटिसिपेट। नाउ वट एवर माई एक्सपीरियंस विद GST लॉज इज, कोर्ट्स आर नॉट हैप्पी टू प्रोवाइड एंटिसिपेटरी बिल इन दीज केसेस। कहीं ना कहीं एक माइंडसेट कोर्ट का भी ये बन गया है कि फेक इनवॉइसेस बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, इसीलिए कोर्ट एंटिसिपेटरी बिल इन केसेस में नहीं दे रहा। कोर्ट्स आर यूजुअली सेइंग दैट you please cooperate with the department and let department handle it, और जब आपको अरेस्ट करेंगे then you come for the regular bail rather than coming for anticipatory bail. मैं ये नहीं कह रहा कि 100% केसेस में एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिल रही, रिजेक्ट हो रही है, बट व्हाट आई एम सेइंग, इन मैक्सिमम ऑफ द केसेस anticipatory bails are being rejected by the department when you have received someone. Now, here are cases where as I said कि 60 दिन में आपको बेल मिलनी ही मिलनी है। Within 60 days, bill should be provided to you. Because see, एक बार आपको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के within 60 days आपको पूरी चार्जशीट और पूरा केस प्रेजेंट करना है। If it is not been done, then 61st day आपको बेल आपका राइट हो जाता है। ये हम वैसे बाद में डिस्कस करेंगे। What are the conditions? What things means? What things court checks before granting you bail? लेकिन 60 डेज में अगर आपके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल नहीं हुई तो आपको बेल मिलना आपका एक राइट है। नाउ दिस वाज द केस ऑफ इन दिस 60 days charge sheet was not filed. On 63rd day, the client approached to the court and requested for bail. And High Court Madras said that yes, we can't add on any condition, and on 63rd day, now you are eligible for bail. And see, remember one line, bail is your right, jail is an exception. Jail is an exception. 61st day आपका, अगर 60 days में डिपार्टमेंट ने आप पर पक्की चार्जशीट फाइल नहीं करी, they have not submitted all the details, तो 61st day में आपका राइट हो जाता है बेल लेने in GST offenses. Now, in this case, person was arrested, and even after 60 days have gone, charge sheet was not filed, and therefore High Court Gujarat said now this is a fit case for default bail, और आपको default bail दी इसलिए जाती है because they consider your personal liberty. Personal liberty एक बहुत बड़ी चीज है which should be provided to you. But again, before arresting someone, adjudication is very important. Department हवा में नहीं कह सकता कि मुझे इससे 5 करोड़ रुपए लेने और मैं इसे अरेस्ट कर रहा हूँ, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। They have to complete, they have to adjudicate कि मुझे टोटल पैसा कितना लेना बनता है। And this has been said in many cases. For example, in the erstwhile service tax laws, which is the judgment of Bombay High Court, because they said that before launching a prosecution,
before launching a prosecution in case of cognizable offense and non-bearable. So it cannot be that you have an apprehension. You have an apprehension कि मुझे लग रहा है कि इसने इतने पैसे चोरी करे, इतना टैक्स चोरी करा है. लगने से नहीं होता. That should be proved. So before launching such kind of prosecution, what you have to do, you have to adjudicate. You have to exactly come with the numbers. अगर आपके पास numbers नहीं है, you can't arrest a person. This was a decision, very celebrated judgment. Make my trip. In fact, I would recommend every chartered accountant to have printout of this case in their office, जो कि कभी भी आपको हमेशा हेल्प करेगा in understanding what department does and how department should have done. Now, in this case, executives of Make My Trip were arrested, and it was asked by them that whether you have completed adjudication. आपकी demand final हो गई. Answer of the department was, we are in the process of calculating. Even before they have completed their calculations, they have arrested the person. So court said, and this was affirmed by Supreme Court also. So what they said, that this is not the way how a professional tax department should work. The conduct of the department should be beyond being biased. It shouldn't look कि वो किसी एक को target कर रहे हैं. Of course, when there are cases of habitual offender, आपकी दूसरी तीसरी चौथी गलती है, तब तो फिर adjudication करने का कोई मन नहीं है. लॉ भी कहता है कि भाई सेकंड गलती पर आप माफ नहीं करेंगे. But for the first mistake, first you have to adjudicate, you have to calculate कि कितना टैक्स बन रहा है, मुझे कितना पैसा इससे लेना है. Then only you have to arrest. Now, this is the case of High Court Madras. In this case also, it was said that except for habitual offender, you have to calculate. Sorry, you cannot arrest without computing the final amount recoverable from the person or the amount which he has spun off. कितने रुपए का नुकसान डिपार्टमेंट को हो रहा है, रेवेन्यू को हो रहा है, जब तक आप ये नहीं बताएंगे तब तक आप नहीं कर सकते. Now, in this case, what happened? The investigation hui, and they said that you have taken fake invoices, and you reverse the amount 1.52 crore rupees immediately, or you reverse it. Now, this deemed distributor approached High Court and said that my determination or liability is not finalized. Liability is not finalized, और liability finalize होने से पहले ये मुझसे कह रहे हैं आप ITC रिवर्स कर दीजिए क्योंकि ये फेक इनवॉइसेस. And High Court Telangana said, yes, you are right. जब तक liability final नहीं होती, जब तक calculations पूरी नहीं होती, you can't ask for someone to reverse ITC. And what I feel, अगर आप में से कोई बताना भी चाहे, so we have audience, so someone might write in chat box, इस तरह की नोटिसेस आते हैं या नहीं आते डिपार्टमेंट से कि साहब आपने फेक इनवॉइसेस दे रखा है, एक्स पार्टी का रजिस्ट्रेशन हमने कैंसिल कर दिया बिकॉज ऑफ फेक इनवॉइसेस. नाउ जो भी आपने इससे सेल परचेज करी है, यू हैव रिसीव्ड सप्लाईज फ्रॉम दिस पार्टी, और इससे आपकी एक्स अमाउंट की सप्लाईज आई है, आप इसको तो रिवर्स कर दीजिए, ITC रिवर्स कर दीजिए. एंड समटाइम्स दे से कि भैया इतने रुपए कैश पे कर दो, एंड दिस वी आर टॉकिंग अबाउट प्री शो कॉल नोटिस. होता है या नहीं होता, चैट मैसेंजर में कोई भी बता दीजिए. ये व्हाट आई एम सेइंग इट इज राइट और रॉन्ग. क्या आपने भी ऐसा होते देखा है? क्या आपके किसी क्लाइंट का, या आपने सुना होगा कि आपके किसी फ्रेंड के किसी क्लाइंट को इस तरह के नोटिस आए? जस्ट अ स्मॉल यस और नो. सो देखिए, अगर आप थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेंगे तो मुझे भी पता चलेगा मेरी बात पहुंच रही है, आप लोग सुन रहे हैं. अदरवाइज तो फिर मुझे लगेगा कि मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा, जस्ट मोटिवेशन भी नहीं मिलता. देखिए, फिजिकल सेमिनार में अलग बात होती है.
And if you have any questions, you can write in chat messenger also. We can keep it as interactive as we can. We have got 2 answers. Yes, both are saying yes. Thank you, Bhardwaj sir, and thanks Jitendra Jain ji. And see, these kind of notices which comes, you immediately reverse. Thank you. You have received this notice. So when you say कि इस तरह की बातें करता है डिपार्टमेंट कि भैया आज ही पैसे रिवर्स कर दो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है. Now in one of the cases, what happened? कि पार्टी ए ने बी से सामान खरीदा एंड बी पर चार्ज लगाए कि उसने फ्रॉड कमिट करा है. उसका रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ए का भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया. Is this sustainable? So this was the matter before High Court Odisha, which said no. Cancellation of A for fraud done by B is not sustainable unless you prove it. Unless you prove it that whatever B has done, A has the knowledge of that. अगर A को यही नहीं पता कि जिससे मैं गुड्स खरीद रहा हूं वो गलत काम करता है, then how can you cancel registration of A? How can you cancel registration of A? And this is a major problem. और डिपार्टमेंट, मैंने भी कुछ केसेस हैंडल करे हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जिसमें इस तरह के नोटिसेस आए हैं. किसी का रजिस्ट्रेशन उन्होंने कैंसिल करा और वो कैंसिल भी कब से कर रहे हैं. डिपार्टमेंट जब भी कैंसिल करता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जिस दिन से उसने रजिस्ट्रेशन लिया. कई केसेस में तो वो 1 जुलाई 2017 से आज तक का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते. और पूरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के बाद कहते हैं साहब जितना भी आपने आईटीसी ले रखा है ये तो क्लाइंट आज की डेट में कैंसिल्ड है. उस समय 2A में दिख रहा था, 2A में नहीं दिख रहा बिकॉज 2A इज डायनामिक. तो आपका ये सारा आईटीसी फेक है एंड नाउ रिवर्स द मनी और एल्स वी आर गोइंग टू कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन. तो दोनों ही स्थिति जो डिपार्टमेंट की है दोनों ही नॉन सस्टेनेबल है. नाउ order has been passed without notifying, without computation, without passing a speaking order, and this is not acceptable. In fact, मैं अभी इस सेशन में जाने से पहले ही अपना एक आर्टिकल नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड पर एक्स ग्रुप पर भेजा है. होप दैट वुड बी पब्लिश्ड बाय टुडे इवनिंग और टुमारो मॉर्निंग मैक्स. नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड क्या होता है इन जीएसटी और किन किन केसेस में आप डिपार्टमेंट के ऑर्डर या शो कॉस्ट ऑर्डर के अगेंस्ट चार्ज कर सकते हैं दैट दिस ऑर्डर वाज पास विदाउट नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड. वो आप उस आर्टिकल से ले सकते हैं. देयर आर सेवरल केसेस जहां पर ऑर्डर्स आर पास विदाउट से एक्चुअली विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड. अगर ध्यान से पढ़कर ऑर्डर बनाया जाता या चीजों को एक्सेप्ट करके ऑर्डर बनाया जाता तो ऐसा कुछ होता नहीं. कई बार होता भी है. आप भी जब नोटिस के या शो कॉस्ट नोटिस के रिप्लाई कर रहे होते हैं तो कई सारी चीजें डिपार्टमेंट कहता है जी आप ठीक कह रहे हैं पर मैं इसको मानूंगा नहीं. whatever document or evidence or material you are providing them, they don't accept it और ऑर्डर पास कर देते हैं without taking those material in record. क्योंकि अगर वो उन मटेरियल को ऑन रिकॉर्ड लेंगे तो वो ऑर्डर पास ही नहीं कर सकते. कई केसेस में तो वो आपसे कहते हैं कि आप अपना रिप्लाई बदल दीजिए और मैं आपको एक्स ऑर्डर पास करूंगा. सो देयर आर केसेस जहां पर इस तरह की इश्यूज होते हैं. और ये भी कोई मैं नई बात नहीं कह रहा, आपने इसको भी फेस किया ही होगा. आपने इस तरह के भी केसेस फेस करे होंगे. नॉट ओनली इन जीएसटी, यू माइट हैव फेस्ड दीस काइंड ऑफ थिंग्स इन इनकम टैक्स आल्सो, वेयर orders are being passed without actually incorporating whatever material you have submitted to them. Now, what is ITC? Very simple. ITC definitions में मैं नहीं जाता. Eligibility section 16 से बनती है. Is my PPT visible? Is my system visible? दोबारा स्टार्ट हुआ है सर. Yes, now it is visible. Now visible ना? It is visible now. Input tax credit. Yes. So section 16 says about the eligibility
16 में आपकी एलिजिबिलिटी है, 17 में अपोर्शनमेंट और ब्लॉक क्रेडिट है, भाई टोटल इतना आईटीसी हुआ, इसमें से इतना पोर्शन पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। 18 कहता है आपको क्रेडिट स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इन चीजों पर मिले। अगर आईएसडी है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, तो सेक्शन 20 में किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट होना है। अगर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो सेक्शन 21 कहता है जी रिकवरी कहाँ से करना है। एक लाइन में समझा देता हूं कि जहां पैसा पहुंच गया, आईटीसी जहां आपने फॉरवर्ड कर दिया वहां से रिकवरी करी जाती है, कभी भी आईएसडी से रिकवरी नहीं होती। एंड देन वी हैव रिवर्सल प्रोविजंस, मिस्टेकनली इट इज रिटन सेक्शन, इट इज रूल 42 43, जो कि आपका 3B में अलग से आपको दिखाना भी। ये सारी चीजें 49A सेक्शन बाद में इंट्रोड्यूस कराएगा, जो बताता है किस तरह आपको एडजस्ट करना है आईटीसी। बेसिक चीज है सेक्शन 16 में 4 कंडीशन। फर्स्ट इज यू शुड हैव रिसीव सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सेकेंड, you should have tax invoice. Third, you have the person has paid taxes to the government. Fourth, you have filed your return. अगर आपने ये 4 चीजें कर ली, सेक्शन 16(2) के 2 प्रोविजन है। फर्स्ट, you have made a payment in 180 days. अगर 180 days में पेमेंट नहीं हुआ, then you have to reverse the proportionate one. And second proviso, if received in lots, तो लास्ट लॉट में क्रेडिट पूरा लेना। रूल 36(4) जो कि नवंबर 2019 में आया, उसने कहा कि साहब पहले आपको जो 2A में दिख रहा है तो उसका 120% मैक्सिमम आप दे सकते हैं, एंड देन जनवरी 2020 से उसको 110% कर दिया गया, व्हाटएवर वाज एलिजिबल इन 2A, मैक्सिमम 110%। बिकॉज ऑफ कोरोना कोविड, फेब से अगस्त तक के लिए रिलैक्सेशन दिया गया, यू कैन टेक रेट एज मच एज यू कैन, एंड सितंबर 2020 में फेब से अगस्त तक का accumulated impact देना था, and then from 1st January 2021 it is 105%, 100 plus 5%. Now with this year fiscal budget has passed 16(2) AA, but that is yet to be notified. जब वो notify हो जाएगा, then you can get credit of maximum 100% of the credit, which I feel should come from 1st January 2022. यहाँ से आ जाना चाहिए। And of course with QRMP, either you are in monthly scheme or you are in QRMP, और QRMP में अगर आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए, सप्लाईज 50 लाख से ऊपर नहीं है B2B की, तो आपको मंथली IFF फाइल कर दीजिए, जिससे कि सामने वाली पार्टी को 2B and 2A में क्रेडिट दिखता रहेगा। एंड अगस्त 2020 से we have 2B also. So 2B tells you eligibility, 2A tells you quantum, the amount. So eligibility 2B and amount 2A, 105% of 2A। बड़ा सिंपल चीज है। जैसे अब हमारे इनकम टैक्स में भी 1-2 चीजें आ गए ना, वेरिएंस इन फॉर्म 26AS एंड इन AIS, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टेटमेंट यहाँ भी आ गई, ये हमने कर लिया। दीज आर द 4 कंडीशंस सब्जेक्ट टू रूल 36 सब रूल 4 and section 49. Now, this section has been challenged, and High Court Tripura has issued notice to the government that this section of stopping credits is against violation of this Constitution. Article 14 Constitution का बोलता है that about free trade and free profession. ये कहीं ना कहीं चैलेंज करा गया है, और बहुत लोग मानते हैं कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, सेक्शन है, which should not be there, and at least बाकी टाइम पर अगर आप एलिजिबिलिटी रिजेक्ट नहीं भी कर रहे तो भी रिजेक्ट कर भी रहे हैं तो ठीक है, बट अगेन व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग एमनेस्टी इन दोस डेज, सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 शुड नॉट बी देयर। एंड आईटीसी पर जरूर एक इश्यूज रहते हैं। कुछ लोग मानते हैं दैट आईटीसी इज माय फंडामेंटल राइट एंड इट इज माय राइट टू क्लेम आईटीसी। सम बिलीव्स
It is only a procedural benefit. It is only a procedural benefit. जो लोग कहते हैं मेरा फंडामेंटल राइट है, द ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स वन, वो कहते हैं साहब मेरा आईटीसी है, मैंने लिया है, मैंने पेमेंट करके लिया है, दिस आई हैव एक्रूड, आप मुझे प्रोसीजरल के हिसाब से डिनाई नहीं कर सकते. नो, expert of group 2 say this is a procedural benefit, and when you don't follow any procedure, this ITC can be denied. दोनों रिवर्स व्यूज है. मेरा अपना मानना यह है that in GST is more of procedural law rather than a complex law or conceptual law. अगर आप किसी प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते, either your output would be increased or your ITC would be reduced. ITC पर रिसेंटली दो बड़े केसेस आए हैं, we will be discussing both from Supreme Court. First is inverted duty structure VKC फुटवेयर का, जहां हाई कोर्ट गुजरात का एक डिसीजन था regarding input tax credit, ITC on services, supplies of services, and second was the issue of 2A for Bharti Airtel Limited, again the Delhi High Court decision. And in fact दोनों ही डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया. दोनों हाई कोर्ट के डिसीजन वर इन फेवर ऑफ द असेसी, and both of the decisions which came from Supreme Court are in favor of the revenue or the department. So now VKC footwear में हो ये रहा है that when we say about refunds of inverted duty structure का मतलब होता है, for example your fabrics or footwear, तो footwear का output is 5% and input is 12% or 18%. तो इसकी वजह से क्या होता है, रॉ मटेरियल की वजह से accumulate हो जाता है ITC. So what inverted duty structure says that except where we say it is in the negative list, आपका अगर ऐसा इनपुट इकट्ठा हो रहा है, आप उस सबका रिफंड मिलेगी. ना जब ये सेक्शन ड्राफ्ट हुआ तब उसमें इनपुट सी लिखा हुआ था. इससे hello, am I audible? Am I visible? Yes, sir. You are very much audible and visible. Okay. Your PPT is also clearly visible. VKC footwear SC. Yes, sir. So the thing was that ITC जो रिफंड मिलना है वो किसका मिलना है, ITC ऑफ इनपुट्स और ITC ऑफ इंक्लूडिंग क्रेडिट्स ऑन सर्विसेज. तो जो हम सेक्शन को पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, तो इनिशियल में मतलब भी यही आ रहा था दैट ITC शुड बी अवेलेबल ओनली ऑन इनपुट्स. लेकिन हाई कोर्ट का डिसीजन आया एंड हाई कोर्ट सेड नो, यू कैन नॉट चेंज द लॉ एंड इट शुड बी ऑन द ITC ऑन द क्रेडिट्स ऑल्सो. लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, द सेक्शन हैज टू बी रेड एज इट वाज थॉट, और उसमें इन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया हाई कोर्ट का ऑर्डर.
लेकिन एक बात आप देखिए, इन्होंने ये जरूर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम ऑर्डर तो रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो फॉर्मूला बना हुआ है वो सही नहीं बना हुआ, और ये फॉर्मूला गलत होने की वजह से वी आर आफ्टर दिस डिसीजन, GST काउंसिल शुड टेक नोट ऑफ दिस एंड चेंज द फॉर्मूला। GST काउंसिल ने कहा यस वी वुड बी चेंजिंग दिस फॉर्मूला, और फुटवेयर ने और बाकी ने रिक्वेस्ट कई बार दी, उन्होंने कहा हम फॉर्मूला जो है बिकॉज ड्यू टू कोरोना कोविड दिस इज नॉट द राइट टाइम, वी वुड बी चेंजिंग फ्रॉम अप्रैल नेक्स्ट ईयर। अप्रैल 2022 का प्रॉमिस करा, लेकिन उस प्रॉमिस से बैकआउट कर गई गवर्नमेंट, और अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया है दैट rates for footwear have been increased from 5% to 12% from 1st of January 2022. Similarly, rates on fabrics are also increased from 1st January 2022, and for the government contracts in certain cases जो 12% का benefit था वो भी 18% कर दिया। Now the question could come in your mind कि क्या ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है, अपनी बात से पीछे हट जाए, can't there be promissory estoppel? उसको भी अभी देखेंगे एक दो स्लाइड के बाद। नाउ इन भारतीय एयरटेल व्हाट हैज हैपेंड, अगर आपको याद हो तो जीएसटी में जब इनिशियल में रिटर्न्स प्रॉमिस करी गई थी, देयर वाज जीएसटीआर 1, 2 and 3. One was to be filed between 1st to 10th, 11 से 15 तक जीएसटीआर 2 फाइल करनी थी, और 16 to 20th we have to file जीएसटीआर 3. बट इनिशियल में सर्वर काम नहीं कर रहा था, so what they did, 1 and 3B was implemented as a stop gap arrangement, और ये इंट्रोड्यूस करी गई, और स्टॉप गैप अरेंजमेंट में ये बोला गया कि ये कुछ दिन के लिए है और आपको जीएसटीआर 2 and 3 बाद में फाइल करनी है। फेयर इनफ, लेकिन जुलाई की रिटर्न भी टाइम से फाइल नहीं हो रही थी, स्लो चल रही थी, तो गलतियां होने के चांस थे। तो सितंबर में सर्कुलर नंबर 7 आया जीएसटी डिपार्टमेंट से, सीजीएसटी का, एंड दैट सेड that if there are mistakes in GSTR 1 and 2 which would be rectified when you will file GSTR 3 later on, GSTR 3 फाइल करना था, और ये 1-2 महीने के लिए 3B फाइल हो रही थी, इट हैज टू बी करेक्टेड। लेकिन ये बढ़ती चली गई, एंड सर्कुलर नंबर 27 29th December 2017 को आया, which said that we will not bring GSTR 3 for the time being, and the time period for GSTR 3B is being extended from here. Now what has happened, जुलाई अगस्त सितंबर की जब रिटर्न फाइल करी, एयरटेल के पास उस समय जब GSTR 1 and 2 जब आप फाइल करते थे तो 2A और 1A जनरेट होना, और उसमें यह था कि अगर आप 2 में एक्स्ट्रा डिटेल देते, और अगर जो सप्लायर है आपका, आपने तो उसने बिल नहीं चढ़ाया अपने जीएसटीआर 1 में, और आपने जीएसटीआर 2 में वो बिल चढ़ा दिया, जो सप्लायर मिस कर गया, तो सप्लायर के पास 1A जनरेट हो जाता, और वो उस लायबिलिटी को एक्सेप्ट कर सकता था, मॉडिफाई कर सकता था, रिजेक्ट कर सकता था, और वो जो भी एक्शन लेता उससे उसका जीएसटीआर 1 चेंज हो जाता। जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 2 चेंज होने पर फिर इधर से 1A के रिस्पॉन्स में आपका 2B जनरेट होता, और इस तरह ये चेन पूरी चलनी थी, बट वो मैकेनिज्म कभी आया ही नहीं। तो 2A और 2B जो आज हम देख रहे हैं ये शेप में नहीं था, और रेक्टिफिकेशन होना था जीएसटीआर 3 से, वो रेक्टिफिकेशन नहीं हुआ। इन्होंने एक्स्ट्रा, इनका आईटीसी लैप्स कर गया, इन्होंने एक्स्ट्रा कैश पे कर दिया। नाउ भारतीय एयरटेल वेंट टू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट एंड सेड कि देखिए मेरी कोई गलती नहीं थी, जीएसटीआर 2, ये गलती मुझे तब पता चली जब आपने जीएसटीआर 2A पहली बार अक्टूबर 2018 में दिखाया। अगर आप ये 2A पहले मंथ में दिखा देते तो मैं इसको तभी क्रेडिट ले लेता, और आपका सर्कुलर 7 भी यही कह रहा था कि मेरे को इस तरह ही काम करना है। वो तो आपने सर्कुलर जो 29 दिसंबर को इशू करा उसमें आपने मना कर दिया, अदरवाइज तो मेरे को बेनिफिट मिल जाता। एंड दिल्ली हाई कोर्ट सेड यस यू आर राइट एंड देयरफॉर यू शुड गेट अ रिफंड ऑफ इट। अब उन्होंने कहा कि साहब रिफंड तो फाइल ही नहीं हो सकता। देन दे सेड दैट बिकॉज
ठीक, उनका कहना था हाईकोर्ट वो सरप्राइज कि हम क्या मैनुअली फाइलिंग भूल चुके हैं। बोले अगर सिस्टम परमिट नहीं कर रहा कुछ भी फाइल करने का तो आप मैनुअल सबमिट कर दीजिए, रिफंड तो आपको देना पड़ेगा। एंड डिपार्टमेंट वेंट टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट दिस ऑर्डर एंड सुप्रीम कोर्ट फेवर्ड द डिपार्टमेंट एंड सेड कि वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द लॉ, जो लॉ है जैसा लॉ है वी विल एक्सेप्ट इट। एंड सेम थिंग उन्होंने वीकेसी फुटवेयर में भी बोली है, whatever the law is we are not going to change the law for benefit of the person. लॉ मेकिंग हमारा काम नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू स्टेप इन द शूज ऑफ द गवर्नमेंट। नो प्रोमिसरी एस्टॉपल कि गवर्नमेंट आज कोई चीज प्रॉमिस करती है और कल को वो काम पूरा नहीं करती, तो क्या हम प्रोमिसरी एस्टॉपल पर गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि ये आप पूरा कीजिए? नाउ दिस केस वाज इन वैट का केस है। वैट के केस में क्या हुआ, आईटीसी के लिए मना नहीं था, पूरा आईटीसी मिलना था, लेकिन बाद में रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई स्टॉक ट्रांसफर वगैरह पर। द पार्टी वेंट इनटू पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, दिस इज द केस ऑफ हरियाणा वैट, और हरियाणा वैट में उन्होंने जाकर गवर्नमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट दे सेड दैट this law what they are trying to make is not as per the framework suggested by white paper on VAT आया था। तो जब आपने वैट लाए थे तब आपने एक्स चीज प्रॉमिस करी थी, जब आप लॉ बना रहे थे तब भी आपने एक्स चीज ही लेकर आए थे, बट अब आप लॉ चेंज कर रहे हैं तो एक्स को हटा रहे हैं। एंड द डिपार्टमेंट एंड द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सेड नो वी कैन नॉट फोर्स गवर्नमेंट टू मेक लॉ। ये आज का डिसीजन नहीं बता रहा मैं आपको, ये पुराना डिसीजन है। दे सेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द लॉ। ये 2009 का डिसीजन है, जून जुलाई के आसपास का। They said that this decision we have to accept it, that whatever law government has formed we have to follow that law. In fact आप जीएसटी में भी देखिए, जीएसटी में जो 27 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई 4 मई 2018 को, अगर आप उसके उस दिन 4 प्रेस रिलीज आई थी, आप उसमें एक प्रेस रिलीज पढ़ लीजिए तो उसमें पैरा 2 और पैरा 4 में लिखा हुआ है, ओ सॉरी एबीसीडी करके लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा हुआ है कि आईटीसी के लिए हम कभी भी जो परचेजर है उसको परेशान नहीं करेंगे unless we fail to recover ITC from the seller, और आपको प्रोविजनली क्रेडिट मिलता रहेगा आईटीसी। बट अगेन within a year or year and a half they came with rule 36 sub rule 4, आईटीसी रेस्ट्रिक्ट कर दिया 110 120%, then 110%, then 105%, वो तो अब 100% भी कर देंगे। और अगर आप रूल 86 भी देखें तो 99% आईटीसी कर दिया गया, 100% भी आईटीसी नहीं मिल रहा आपको। तो ये जो चीजें हैं, क्या प्रोमिसरी एस्टॉपल पर गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हैं कि जो आपने आज प्रॉमिस करा वो आप फुलफिल कीजिए? द आंसर इज नो, यू कैन नॉट फोर्स द गवर्नमेंट, and that is irony of the law. And to curb fake invoices, what government is doing? So they have linked your registration with Aadhaar card. Now, even when you link your Aadhaar card, someone from the department comes and visits you. Now, this is very bad position. And then we have to do Seva Pani of the department. Then they have introduced Rule 86A. Rule 86A का मतलब है, whenever commissioner has reasons to believe that you have taken fake invoices, to the extent those are fake invoices, he can block your ITC, and this block would work for 1 year. Within that 1 year, department has to conclude proceedings under section 73 or 74. And of course, जब आपने fake invoice लिया तो 73 में नोटिस नहीं आ सकता, it has to come in 74 only. This is my understanding. तो ये दो रूल जीएसटी लॉ कमेटी ने बनाए, एंड इसके बाद फिर उन्होंने एक रूल और बना दिया जो मैं भी बोल रहा था, रूल 86B. रूल 86B कहता है that if your turnover is more than 50 lakh rupees a month, then you are allowed to take maximum 99% of the credit, and 1% has to be mandatory paid in cash.
एक्सेप्ट उनके पास एक्सेप्शंस हैं. इट इज अ PSU, इट इज अ बैंक, इट इज अ डिपार्टमेंट, government department. You have paid X amount of income tax, Y amount of income tax. The company has paid. You have taken refund of X amount, Y amount. There are so many conditions. The problem with this rule is, here rule आए हुए, probably this rule came on 22nd or 23rd of December 2020. The problem with this rule is कि 1 साल हो गया है और आज तक इसकी गाइडलाइन SOPs इशू नहीं हुई. SOPs इशू नहीं हुई. What does this mean? इसमें जो एक्सेप्शन दिया हुआ है कि कमिश्नर कैन अलाउ यू टू रिलैक्स रूल 86B एंड टेक 100% ऑफ द क्रेडिट. लेकिन ये किन सर्कमस्टेंसेस में होना है, इसकी गाइडलाइन अभी तक नहीं आई. नाउ दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम. सी, व्यूज ऑफ समवन, say commissioner sitting in Himachal Pradesh would be different from commissioner of Kerala. The commissioner of say Manipur, Meghalaya would be of different view than commissioner from Gujarat or Rajasthan. When we see that the India is incredible India, आपको अगर GST law one nation one tax में चलाना है, then you should guide your department कि उनको काम कैसे करना है. So again, this is again a problematic thing, because without SOP this rule cannot be used. Now again rule 86A पर वापस आते हैं. Now reasons to block your credit in rule 86A, the power is given to commissioner or the authorized person. Now the authorization are usually not there. Second thing, डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से आपका डिप्टी कमिश्नर या कोई भी असिस्टेंट कमिश्नर आपका ब्लॉक कर देता. जब आप उसकी फाइल में नोटिंग देखते हैं, नाउ यू कैन आस्क, इफ इट इज ब्लॉक्ड यू कैन आस्क फॉर नोटिस, यू कैन आस्क फॉर डिटेल फ्रॉम दिस. उसमें उन्होंने रीजंस रिकॉर्ड नहीं कर रखे, उन्होंने अमाउंट रिकॉर्ड नहीं कर रखा होता, क्वांटम रिकॉर्ड नहीं कर रखा होता. सबसे बड़ी बात, रूल 86A में जब ये इंप्लीमेंट होना है तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड डिलीट कर दिया गया फ्रॉम रूल 21A. यानी रूल 86A में आपका ITC ब्लॉक करने से पहले आपको हियरिंग देना जरूरी नहीं, लॉ से डिलीट कर दिया. अब बताइए, अगर लॉ ही इस तरह का बनेगा जिसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ही नहीं है, नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है प्रिंसिपली, अब आप सोच सकते हैं डिपार्टमेंट में बस कितनी ज्यादा पावर आ जाए. अभी एक RTI रिप्लाई में किसी ने पूछा था कि रूल 86A में कितना ब्लॉक है. सो द रिप्लाई फ्रॉम RTI केम विद कि 6.5 लाख 6,53,000 का रूल 86A में ब्लॉक पड़ा हुआ है. और फिर सेकंड क्वेश्चन था उस RTI में कि 1 साल से ऊपर का कितना ब्लॉक पड़ा हुआ है, यानी 1 साल बाद जो लॉ में लिखा हुआ है कि आप 1 साल तक ब्लॉक कर सकते हैं रूल 86A में, तो 1 साल के ऊपर का भी ब्लॉक पड़ा है क्या, और है तो कितना है. एंड दे सेड दैट यस, दिस अमाउंट इज ब्लॉक फॉर मोर देन 1 ईयर. जब सोशल मीडिया पर शोर मचा, 2-3 दिन बाद कुछ न्यूज़पेपर ने इस पर आर्टिकल लिखे, एक मैगजीन ने भी लिखा, तो डिपार्टमेंट ने तो कोई रिप्लाई उस RTI का दोबारा दिया नहीं. लेकिन GST इन्फोसिस का जो ट्विटर हैंडल है उसने एक रिप्लाई दिया कि जो RTI का रिप्लाई है वो गलत है, एंड द करेक्ट फिगर आर दिस. ये गलत नंबर्स इसलिए चले गए बिकॉज इनपुट गलत करा गया था कंप्यूटर में बाय द SSC. आई फेल टू अंडरस्टैंड कि SSC ने क्या खुद अपना 86A में ब्लॉक कर लिया होगा पैसा. SSC अपना पैसा खुद ब्लॉक थोड़ी कर सकता है, या SSC ने RTI का रिप्लाई दिया होगा. आई फेल टू अंडरस्टैंड कि SSC की गलती कहां पर है. एंड दे हैव एक्सेप्टेड इन द फर्स्ट रिप्लाई दैट 1 साल से ज्यादा का भी ब्लॉक पड़ा हुआ. तो अगेन 1 साल से ऊपर का ब्लॉक पीरियड है. व्हाट आई फील in this budget, a major change could come कि जिसमें ये 1 साल का पीरियड बढ़ाया जा सकता है जो रूल 86A में ब्लॉक है 1 साल.
बिकॉज सी एज पर द वर्किंग ऑफ द डिपार्टमेंट वो एक साल में वो कंक्लूड कर ही नहीं पा रहा है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में जहां भी वो 86A में ब्लॉक करके बैठा है पैसा। तो जब वो कंक्लूड नहीं कर पा रहा, कंप्यूटेशन पूरी नहीं हो रही, तो डिपार्टमेंट को बट नेचुरली एक साल बाद उसको पैसा खोलना पड़ेगा। और इसीलिए अभी कुछ दिन पहले एक न्यू गाइडलाइन आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि रूल 86A में अगर आपका पैसा ब्लॉक भी कर दिया गया है तो व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस इन विच assessee कैन अप्रोच टू द कमिश्नर एंड कमिश्नर हैज टू अलाउ डेबिट फ्रॉम दिस block from 86A. This is a new development, but again, rather than relaxing the law, what they are trying to run the law through press release. वो या सर्कुलर के थ्रू लॉ चलाना चाह रहे हैं. दिस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैज क्रिएटेड अ नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम. लीव दिस सेक्शंस. सो दिस वाज 94/2020. लेकिन अब फिर भी समस्या यहाँ पर हमारे साथ फिर खड़ी हो जाती है. सारा डिस्कशन हो गया है, लेकिन ये तो बताइए फेक इनवॉइसेस है क्या? आदमी को अरेस्ट कर दिया, उसका आईटीसी ब्लॉक कर दिया, उससे बोले पैसे दे दो, सब कुछ हो गया, लेकिन फेक इनवॉइसेस क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड. So on 12th May 2019, SOP on fake invoices was issued by CBIC. CBIC कहती है कि सबसे पहले there should be a concept of mens rea. आपके दिमाग में कोई बेनिफिट उठाने का होना चाहिए थ्रू अनलॉफुल मीन्स, तभी आप कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस रिया में फॉल करें. अच्छा, एक चीज और, जब 86A में एक सेकंड पीछे आते हैं, जब भी कभी 86A में अगर ब्लॉक हो जाए पैसा रूल 86A में, तो हमेशा जो रीजंस हैं वो आप मांग सकते हैं डिपार्टमेंट से. रीजंस टू सस्पेक्ट एंड रीजंस जिन पर एक्शन हो सकता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है. तो इफ डिपार्टमेंट blocks your credit without genuine reasons, you can always challenge those blocking. So fake invoices की मतलब क्या होता है, काम क्यों करना चाहता है? फेक इनवॉइसेस का बेसिक पर्पस है दैट यू वांट टू अवेल हायर आईटीसी और यू वांट टू एनकैश द आईटीसी, जैसे रिफंड ले लिया. और जो सर्कुलर ट्रेडिंग बोली जाती है कि आपने सर्कुलर ट्रेडिंग से ज्यादा दिखाकर, ट्रेडिंग ज्यादा दिखाकर आपने बैंक से लोन ले लिया, बैंक से लिमिट बढ़वा ली, और व्हाट यू हैव डन, आपने अपनी बुक्स, अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ा ली, और आप आईपीओ वगैरह में या एंजल फंडिंग ज्यादा पैसों में कर ली. सो व्हेनेवर a GST invoice has been issued by an entity without actual supply of goods or services, then that is a fake invoice. लेकिन ये किन केसेस में होता है? फॉर एग्जाम्पल, someone has received ITC without receipt of goods or services. This is fake invoice. आपने सिर्फ एक बिल लिया है, आपने गुड्स और सर्विसेज कभी रिसीव ही नहीं करी. There are cases of diversion also. This is also fake invoices. Invoice of one person directed to another person. For example, आपने सर्विस रिसीव, आपने एक सप्लाई रिसीव करी, आपने देखा यार मेरे पास दो कंपनीज हैं, कंपनी ए, कंपनी बी. आपने कहा मेरे ना कंपनी बी में आउटपुट लायबिलिटी बहुत ज्यादा आ रही है, आप ऐसा कीजिए कंपनी बी में आप मेरे को ये बिल भेज दीजिए, और आपने जो सप्लाईज है वो कंपनी ए में रिसीव करी. तो दिस इज अ केस ऑफ डाइवर्जन, एंड दिस डाइवर्जन इज आल्सो फेक इनवॉइसेस. आपको ये बड़ा जेन्युइन लग रहा होगा कि इसमें तो कोई गड़बड़ हुई नहीं है, सिस्टर कंसर्न में तो बिल डाला है. नहीं, इसमें भी हुई, बिकॉज कंपनी बी हैज यूज्ड आईटीसी विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें एक गड़बड़ और होती है. कई बार क्या होता है, जो पर्सन सामान खरीद रहा होता है वो एक्चुअली जो सप्लायर है उसको जानता नहीं, वो एक्चुअली किसी को जानता नहीं है. दे परचेज गुड्स थ्रू एजेंट से परचेज कर ली, और
एजेंट ने गुड्स तो आपको दे दी, लेकिन बिल ए से ना कराकर बी से करा दिया, बिल ए से ना कराकर बी से करा दिया, एंड देन देयर आर प्रॉब्लम। बाद में कभी को बी को प्रॉब्लम आ गई तो आप फंस जाओ। देन दिस इज अ केस ऑफ सर्कुलर ट्रेडिंग। मान लीजिए आपको ज्यादा टर्नओवर दिखाना है, बैंक लिमिट बढ़वानी है या कोई भी रीजन है, आपने 100 रुपीज की चीज बी को बेची 110 में, बी ने सी को बेची 120 में, 120 की 130 में फिर आपने खरीद ली, देन फिर 130 की फिर आपने 140 में बी को बेची, फिर उसने 150 की सी को भेजी और फिर आपने 160 में खरीदी, और ये 3 बार करा। आपके पास 190 में 100 की गुड्स 190 में आ गई, और जब आपने फाइनली जो एक्चुअल सेल थी वो 200 की थी आपकी टू द रिटेल, आपने 200 रुपये में फिर बेच दी और आपने उसमें टैक्स गवर्नमेंट को जमा कर दिया। हर बार यही हुआ, टैक्स प्रॉपरली आया, गवर्नमेंट को 100 से 200 के बीच का टैक्स आना था, वो गवर्नमेंट को पूरा टैक्स आया थ्रू अगेन सो मेनी कंपनी। गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गवर्नमेंट को हो सकता है इनकम टैक्स का नुकसान हो गया, आपने इनकम टैक्स की वैल्यू कहीं और बाइफरकेट कर दी, दूसरी जगह एग्जम्पशन बेनिफिट ले लिए थ्रेशोल्ड लिमिट्स के, और अदरवाइज ऑल्सो आपने सोचिए 100 की परचेज करके 200 की सेल दिखाते तो 200 रुपए की सेल तो होती टोटल आपकी, लेकिन आपने क्या करा, एक बार 110 की दिखाई सेल, एक बार 140 की दिखाई, एक बार 200 की दिखाई, एक बार 160 की दिखाई। तो इस तरह आपने जो 200 रुपीज की सेल थी वो 700 या 800 रुपीज दिखा दी, तो 3 to 4 टाइम्स आपकी सेल्स हो जाती ना। इससे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होनी भी चाहिए, बिकॉज पार्टी बी, फॉर एग्जाम्पल आप पार्टी बी की बात करें, पार्टी बी हैज issued invoice of 120 rupees. He has shown purchase of 110 rupees from A and sold 120 to C. लेकिन क्या 110 की गुड्स उसे कभी आई थी? The answer is no. So he has claimed ITC without actual receipt of goods or services. तो 110 का जो ITC लिया है that is wrong. अब एक आर्गुमेंट ये भी बन सकता है कि साहब 120 पर भी तो वो टैक्स पे कर रहा है ना, तो 110 का तो क्रेडिट माइनस कर रहा है। अगर आप सेल्स को जेन्युइन मान रहे हो तो आप आईटीसी को भी जेन्युइन मानो। द लॉ इज नॉट डिजाइन्ड लाइक दिस कि अगर आपकी सेल्स जेन्युइन है तो आपका इनपुट भी जेन्युइन होगा। इट इज नॉट डिजाइन्ड, द लॉ इज नॉट डिजाइन्ड लाइक दिस। सैड बट ट्रू। So what are the potential motive of fake invoices? First, evasion of GST on output liability. Conversion of excess ITC, आपने रिफंड ले लिया। Inflating turnover, जो मैं आप सर्कुलर ट्रेडिंग में बता रहा हूँ। Booking fake purchases for getting income tax benefit, उसमें आपने क्या करा, मान लीजिए 100 to 200 का प्रॉफिट था, वो BCD के में बांट दिया और BCD ने सबने 4-4 लाख रुपए की इनकम दिखा दी इनकम टैक्स में। तो जो आपकी 20 लाख की इनकम टैक्सेबल होनी थी ए में, वो 12 लाख उधर चली गई और आपने सिर्फ 8 लाख पर टैक्स दिया। तो इस तरह सबने टैक्स बेनिफिट यूज कर लिया। व्हाट आर द फीचर्स? जीएसटी फ्रॉड को आप ढूंढेंगे कैसे? जीएसटी फ्रॉड को आप ढूंढेंगे कैसे? सबसे पहले जो भी टर्नओवर होगा ये बड़े अमाउंट की ट्रांजेक्शन है, कभी भी कोई छोटी मोटी ट्रांजेक्शन नहीं करेगा। सेकेंड, ई-वे बिल जनरेट करेंगे और शायद ही अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल ना करें, इस केस में देयर वुड बी मेनी नंबर ऑफ एंटिटीज। देखिए, जब ये चीजें मैनुअल थी तब पकड़ना बड़ा मुश्किल था। आप इसको समझ कर देखिए, जब चीजें मैनुअल थी तो
चेन को पकड़ना बड़ा मुश्किल था। A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, बड़ा मुश्किल था ये पकड़ना, ढूंढ पाना, सारी चीजें लिंक करना, डिपार्टमेंट के लिए प्रॉब्लम था। बट नाउ विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एवरीथिंग ऑनलाइन, E to Z भी कुछ सेकंड से क्लिक पर डिपार्टमेंट पकड़ लेता है। So A has purchased goods from B, B has purchased from C, C has purchased from D, D has purchased on E, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, सब पकड़ा जाता है, एक क्लिक पर पकड़ा जाता है कि ओरिजिनली ट्रांजेक्शन कहां से ओरिजिनेट हुई है और इस पूरी चेन में किसने डिफॉल्ट करा है टैक्स पेमेंट का। देखिए, अगर आपको कम पैसों में एक्चुअल क्रेडिट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल यू आर गेटिंग 18% क्रेडिट बाय पेइंग से 12% और 15%, तो वो पूरा पैसा पे थोड़ी करा होगा। कहीं ना कहीं जो चेन है, दैट इज, दिस सॉफ्टवेयर इज वेरी वेरी पावरफुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, दे विल टेल यू एवरीथिंग, दे विल टेल डिपार्टमेंट एवरीथिंग that who are the parties involved in this chain. Then there are problems with CGST and SGST authorities also. This is a major problem in capturing everyone. For example, party A has two GST registration, one in Delhi, which is with Central Delhi, CGST Delhi, and the second one is with Noida, which is with SGST उत्तर प्रदेश। कई केसेस में क्या होता है, एक जगह पाया गया कि इस एंटिटी में बोगस इनवॉइसेस पड़े एंड दे गिव एडवाइस टू द अदर स्टेट ऑफ, लेकिन कई बार अदर स्टेट्स मना कर देती हैं उस पर एक्शन लेने से। वो कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ तो ठीक चल रहा है, हम तो इसको नोटिस नहीं भेजेंगे। सो द डिफरेंस बिटवीन CGST एंड SG अथॉरिटीज इज ऑल्सो ग्रोइंग। कई बार पोटेंशियल मोटिव भी गलत होते हैं, कई बार पॉलिटिकल लिंक्स भी होते हैं, जिसकी वजह से मान लीजिए नोएडा में कोई वेरी पावरफुल विद पॉलिटिकल लिंक्स बैठा है, उसको स्टेट में पॉलिटिकल सपोर्ट है, उसको नोटिस नहीं जाएगा और उसका GST रजिस्ट्रेशन चलता जाएगा। लेकिन दिल्ली में सेंट्रल अथॉरिटीज ने उसको अरेस्ट भी कर रखा होता है। दिस हैपेंस। नाउ व्हाइल रजिस्ट्रेशन someone has filed incomplete or incorrect or dummy address. There are cases where these type of firms exist, have huge turnover but without any assets. जो ट्रांसपोर्ट के नंबर डले हुए हैं, बिल्टी नंबर है, कंसाइनमेंट नंबर है, दे आर बोगस। ये आप भी चेक कर सकते हैं during audits also. I'm not talking about the GST audit, but again GST reconciliation भी आपको करना है, यू कैन क्रॉस चेक दिस, और आप चेक कर सकते हैं कि हमारा क्लाइंट गलत तो नहीं कर रहा। एंड इवन इफ नॉट GST ऑडिट, तो वो फेक इनवॉइसेस सिर्फ GST ऑडिट में तो पड़े हुए हैं नहीं, वो तो आपकी इनकम टैक्स ऑडिट में भी पड़े हुए हैं, वो तो आपकी कंपनी लॉ के ऑडिट में भी पड़े हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस उसी से आ रहा है ना। वी कैन क्रॉस चेक दिस लार्ज नंबर ऑफ इनवॉइसेस, लेकिन कुछ महीने 2 महीने में एक एंटिटी एक्टिव हुई, उसने बहुत सारा काम करा और फिर भाग गई। पहले क्या हो रहा था, लोग GSTR 1 फाइल करे जा रहे थे, GSTR 3 भी फाइल नहीं करे थे, और इसीलिए इसको स्टॉप करा गया। भैया अगर आपने 2 महीने तक कंटिन्यूअस GSTR 3 भी मिस कर दी, देन यू विल नॉट बी अलाउड टू फाइल GSTR 1। नो, व्हाट इज द डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर गोइंग टू डू? द डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर की वर्किंग समझ लेते हैं। डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर जब भी रन करेगा, इट विल कीप ऑन स्क्रूटनाइजिंग ऑल ऑफ रिस्की प्रोफाइल। So they have definition of risky profile, verification वो internally करेंगे। Now उनके सॉफ्टवेयर में it's a dynamic software, it keeps on upgrading themselves, और टैक्स इवेजन प्रोन एरियाज वो सेक्टर इसमें आइडेंटिफाई कर रखे हैं, पुराने क्या हैं और नए में भी वो डालते रहते हैं। और जैसे इफ देयर आर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, पैन रजिस्ट्रेशन, देन इट इज अ प्रॉब्लम। कुछ कॉमन आइटम्स उन्होंने ढूंढ रखे हैं कि इन केसेस में टैक्स चोरी ज्यादा होती है, और इन सम केसेस इफ योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन रिजेक्टेड, आप रीअप्लाई कर रहे हैं,
and live position with CGST and SGST authorities. ये सॉफ्टवेयर अपने आप में सबको रन करेगा एंड देन इट विल जनरेट अ रिपोर्ट. वो रिपोर्ट कमिश्नर को भेजी जाती है. कमिश्नर ऑफिस से फिर वो रिपोर्ट मार्क होकर नीचे आपके असेसिंग ऑफिसर के पास पहुंचती. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज फर्स्ट इज इंटीमेशन. ये जब मार्क होकर आपके असेसिंग ऑफिसर के पास आएगी, इट विल से दैट योर पार्टी एक्स, पार्टी वाई, पार्टी जेड आर रिस्की प्रोफाइल. अब आपको इस पर रिपोर्ट देनी है. तो व्हाट विल हैपन? फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर क्या करेगा? आइडेंटिफाई करेगा. देन आप इन्वेस्टिगेट करोगे. इन्वेस्टिगेट करने के बाद आप एक्शन लोगे. ठीक है, ये 3 काम होंगे. तो वो इन सब के अलावा ये जो स्क्रूटनी में बता रहा हूं, ये किन पॉइंट्स पर होगी? ये पॉइंट्स होंगे, एक ही एड्रेस पर मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, या टैक्स पेयर को सेंसिटिव गुड्स में काम कर रहा है. सेंसिटिव गुड्स फॉर एग्जांपल सिगरेट है, टोबैको है, गुटखा है, और से पेपर है. पेपर इज अगेन अ सेंसिटिव गुड्स. इन सब में ज्यादा ध्यान रखा जाए. रियल एस्टेट सेक्टर, इसको भी सेंसिटिव माना गया. और if there are multiple registration with common email, common mobile number, common address, ये भी एक प्रॉब्लम करता है. मिसमैच, आपने जो प्रेमिसेस रजिस्टर करवा रखा है और जितनी टर्नओवर आपकी गुड्स की है, वो टर्नओवर आपके उससे मैच ही नहीं कर रही. कि आप इतने अमाउंट की गुड्स अपने प्रेमिसेस डिक्लेयर में स्टोर भी कर सकते. मिसमैच बिटवीन क्वांटम ऑफ ई-वे जनरेटेड, या कहीं किसी स्टेट में इसको आपके पैन को फेक इनवॉइसिंग बोला. एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एबनॉर्मल आईटीसी यूटिलाइजेशन ऑफ मोर देन 95%. 99 तो मैक्सिमम लिमिट अब रूल 86B ने लगा दी. अगर आप 95% से ऊपर आईटीसी यूटिलाइज कर सकते हैं तो क्या होगा? द सॉफ्टवेयर विल इंटीमेट टू द कमिश्नर, सेंड अ रिपोर्ट टू द कमिश्नर. Commissioner will intimate to your assessing officer, now please cross check this party because of abnormal ITC utilization. Now during investigation, what they will do, what department will do? They will visit your place, they will check whether you have adequate manufacturing facility or not. Then they will cross check other things also. If you are in manufacture, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आ रहा होगा. They will cross check it कि भैया जितना आप मैन्युफैक्चर दिखा रहे हैं उतने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है, नहीं हुई. व्हाट अबाउट कमर्शियल यूसेज ऑफ वाटर, और भी बहुत सारी चीजें. कई बार क्या होता है, अगर आपको कोई चीज मैन्युफैक्चर करनी है, देन यू हैव टू गेट सम सॉर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम और सम अप्रूवल फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स. तो वो भी चेक करेंगे कि आपके पास वो अप्रूवल है या नहीं है. एंड देन they ask for agreement between the entity. Now this is a gray area. देखिए, बड़ी कंपनीज में तो एग्रीमेंट होते हैं, परचेज ऑर्डर भी निकलते हैं. बट अगर कोई कंपनी है से 70-80 करोड़ का टर्नओवर है, फैमिली बिजनेस है, नॉर्मली लाला जी इसको देख रहे हैं, तो वो परचेज बिल वगैरह में तो स्ट्रॉन्ग नहीं होते. वो कहते हैं जी मैंने मेल लिख दी. कई केसेस में मेल भी नहीं लिखते, फोन पर बोल देते हैं कितना सामान भेज, और फोन पर ऑर्डर आ जाता, सामान आ जाता. Then there is a problem that you have received goods on a phone call. You had made payment also. The party has absconded. You have utilized that amount, those goods for further supplies, but there is no agreement between the entities. And department can charge you for this also. So this is not a valid ground. कि भैया एग्रीमेंट नहीं है तो मेरे परचेज बोगस हो गई. बट अगेन डिपार्टमेंट कैन चार्ज यू. कंपेयरिंग अदर रिटर्न्स, इनकम टैक्स, आरओसी. इनकम टैक्स तो खास तौर से फॉर्म 26 ईयर्स में आपको जीएसटी या 3B की सप्लाईज दिख रही है. नाउ इफ देयर इज अ मिसमैच, देन इट कुड बी अ प्रॉब्लम.
व्हीकल्स आपने दिखाए हैं, जो भी आपने ई वे बिल में व्हीकल्स डाल रखे हैं. नाउ दे कैन क्रॉस चेक व्हीकल डिटेल्स फ्रॉम आरटीओ ऑफिस एंड it could be possible they doesn't match. And after these, department reached to a conclusion that whatever you are doing is not good. Whatever you are doing is not good. Now, after investigation, department believes that it is a good time to take action here. Now, what sort of action department can take? What does the law permit? Now, key action. They will issue a show cause notice to you. After receipt of your reply, they can block ITC of all the beneficiaries. जिसको भी आपने सप्लाईज कर रखे हैं उन सब का ITC ब्लॉक कर दो. In case you are the one who is originating those fake invoices. In case you have received those fake invoices, उस केसेस में क्या होगा, आपका ITC ब्लॉक कर दिया जाएगा. रूल 86. Department can start proceeding for cancellation of your registration. They can start recovering amount, बैंक अकाउंट सीज कर देंगे. Later on, they can attach your property also, and then there are arrest provisions. ये सब कुछ आपके साथ हो सकता है. ये आप पढ़ लेना, मेल में दे दूंगा PPT. शो कॉज नोटिस दिया, शो कॉज नोटिस का आपने रिप्लाई दिया, रिप्लाई से सेटिस्फाइड नहीं है, डिपार्टमेंट विल इशू समन टू यू. नाउ समन सेक्शन 73, वेरी वेरी स्मॉल सेक्शन, 2 ही सब सेक्शन है और इतना छोटा सा सेक्शन है. बस आप देख लीजिए, मैं सामने लिखा है, इतना छोटा सा सेक्शन है, सेक्शन 70. सम्मन आपको आ गए. मैंने पहले भी कहा, थोड़ी देर पहले भी कहा, सम्मन जब भी आए प्लीज फॉलो दो सम्मन. किसी लॉयर की बात में मत आना, ये कहना कि मैं हाई कोर्ट से स्टे ले आऊंगा, सम्मन में आप जा नहीं पाओगे, ये सब कभी मत करना. सपोर्ट डिपार्टमेंट, बिकॉज कोर्ट भी आजकल ये कह रहा है दैट सपोर्ट डिपार्टमेंट इज अ वेरी स्मॉल सेक्शन. Now the officer, proper officer is power to summon anyone whom we consider necessary. सिर्फ 2 सबसेक्शन, very brief, very vital section, and empowers proper officer to summon anyone. किसी को भी बुलाने की पावर सम्मन में दे दी गई. Now, proper officer has to do inquiry. जब हम GST लॉ, एक्साइज लॉ पढ़ते हैं तो एक्साइज लॉ में इंक्वायरी की डेफिनेशन वाज वेरी वाइड, एंड उसमें लिखा हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट ही कैन इंक्वायर एनीथिंग. और इंक्वायरी में कभी भी रेस्ट्रिक्टिव मीनिंग नहीं दिया हुआ था. उन्होंने कहा था कि कोई भी चीज आपको जरूरी लगे आप उसमें ऐड कर लीजिए. सम्मन आने के बाद मान लीजिए आपसे सम्मन में ABC पूछा गया, सम्मन के बाद आपसे D पूछ रहा है, और आप कह रहे हो कि साहब आपने सम्मन में मुझसे ABC पूछा था, अब आप D नहीं पूछ सकते, मैं आपको D का आंसर नहीं दूंगा. दिस इज नॉट द केस. एक्साइज लॉ में था, जो भी उसको ठीक लग रहा है एड ऑन पॉइंट कर सकता है. नो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज नॉट मेंशन्ड इन GST लॉज. GST लॉ में ये वर्डिंग नहीं है. दिस इज डिफरेंट बिटवीन व्हाट वाज द डेफिनेशन इन ऑफ इंक्वायरी इन एक्साइज लॉज विद GST. तो क्या इसका मतलब डिपार्टमेंट ABC ही पूछ सकता है GST लॉ में, D पूछ ही नहीं सकता? एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग. मेरे हिसाब से GST लॉ में वेलवर्स पावर है, एंड दे कैन आस्क D ऑल्सो. और अगर आपके क्लाइंट ने कोई गलत काम नहीं कर रखा तो D में भी सपोर्ट द डिपार्टमेंट टू क्लोज दिस menace of fake invoice. Now, this is PV Ramanna Reddy, तेलंगाना हाई कोर्ट, एंड इसमें हाई कोर्ट ने कहा that anyone who has been asked should be obliged to give right evidence, right document. You are not allowed to fabricate evidence. You are not allowed to give fake evidence before authority.
and you should not insult authority or you should not interrupt the authority. देखिए, जब भी आपके क्लाइंट को सम्मन आएगा, याद रखना 99% वो पीवी रमन्ना रेड्डी को कोट जरूर करेंगे, बिकॉज ये एक ऐसा डिसीजन है जो 100% गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के फेवर में, और इसकी सारी चीजें वो यूज कर रहे हैं किसी भी नोटिस। नाउ व्हाट विल हैपन इफ दे हैव सम्मन एंड I fail to attend their summon. Now it could be, देखिए, अगर आपका लॉफुल एक्सक्यूज है, कोई ऐसी मजबूरी है कि आप आ ही नहीं सकते, वो तो दूसरी बात है। अदरवाइज ऑफिसर कैन अप्रोच कोर्ट्स, कोर्ट कैन issue a warrant to arrest you with bail, without bail. There could be cases where attachment of your property could also be done. Fine could be imposed, but normally 25,000 की पेनल्टी CGST एक्ट में तो लगा ही सकता है ऑफिसर बिना कोर्ट जाए, और 25,000 की पेनल्टी CGST में लगेगी तो इक्विवेलेंट पेनल्टी SGST में भी 25,000 की लग जाएगी। सम्मन को हल्के में मत लीजिए, मिनिमम से मिनिमम 50,000 रुपए का नुकसान तो कर ही सकता है अगर आप सम्मन पर नहीं जाते। अगर डिपार्टमेंट के पास कोई डिटेल है, सम्मन इशू नहीं कर सकता, सम्मन में दोबारा से वो डिटेल नहीं मांगी जा सकती। डिपार्टमेंट हाईकोर्ट गुजरात, हाईकोर्ट गुवाहाटी, दो से। इस केस में क्या हुआ, ये ईबिस का केस है, दिल्ली हाईकोर्ट। डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट मांगे, एसएससी ने 123 कार्टन्स भर के एक ट्रक में ले जाकर डॉक्यूमेंट दे दिए डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ने कहा नहीं, मैं इस सब चीज का क्या करूंगा, आप मुझे इस स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, मेरा पर्टिकुलर फॉर्मेट है, आप इसी में मुझे डेटा बना कर दीजिए। Against this request by the department, SSC approached High Court and High Court said no. During a summon, you cannot ask a person to create new document. Whatever was available to him, you have to work on. आप summon में additional document complete करने के लिए नहीं कह सकते. Of course, during assessments, department, income tax हो या GST हो या VAT हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी ऐसी होता था, कोई ना कोई अपना फॉर्मेट बता देने कि साहब इस फॉर्मेट में डिटेल बनाकर ले आइए, और हम भी फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मेंटेनिंग रिलेशनशिप हम भी उस फॉर्मेट में बनाकर डिटेल दें। बट इन सम्मन्स नो सच पावर। क्या एडवोकेट की प्रेजेंस जरूरी है अगर वो मुझसे क्वेश्चनिंग करें? क्या मैं इंसिस्ट कर सकता हूं कि मेरे को सुनते वक्त मेरा एडवोकेट मेरे साथ होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट? द आंसर इज नो। The answer is no. But what is the current position? कि आप एडवोकेट को अपने साथ ले जा सकते हैं, वो आपके से दूर बैठेंगे, इतनी दूर बैठेंगे कि वो सिर्फ आपको देख सकें, आपको सुन ना सके। So he would not be in hearing range, but would be visible to you. कई केसेस में होता ही है, सुबह बुला लिया जाता है आदमी को, शाम तक क्वेश्चन नहीं पूछते, कहते हैं जी कल आओ। सेकंड डे भी सुबह से शाम तक बैठा कर रखते हैं एसएससी को, थर्ड डे जाकर शाम को उससे क्वेश्चन करना शुरू कर। नाउ डिपार्टमेंट हैज सेड in their FAQ also that someone should be recorded in office hours and no person should be made to wait for long hours. And this is against Article 21 of the Constitution. Oh, sorry, it's against your personal liberty also कि आपको तंग करा जा रहा है। But all said and done, practically ऐसा नहीं होता। Practically वो आपको तंग करते ही करते हैं और आपको सारा दिन बैठाते ही हैं, लंबा टाइम बैठाते हैं, 2-3 दिन बैठाते हैं। So this is not going to help you. Now, there is a principle of natural justice. You should have power of cross-examination. If someone has charged you for something, then you should have power to cross-examine. So you have the power. You have the power. अगर आपके अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट कोई भी दे रहा है, even if it is a co-accused, तो आप हमेशा डिपार्टमेंट से कह सकते हैं, I want to cross-examine. लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन पावर कब नहीं होती? when the cross examination, when the statement is given by an ex-employee or an employee.
then the power of cross examination can be rejected, or even if it is not rejected, तो वो कहते हैं साहब क्योंकि ये आपका एम्प्लॉय है और आप इससे क्रॉस एग्जामिन करोगे तो वो अपनी बात से मुकर जाएगा, देयरफॉर क्रॉस एग्जामिनेशन की पावर आपको इस केस में नहीं मिलती, नॉर्मली नहीं मिलती। अगर किसी आदमी को अरेस्ट कर लिया गया तो उसके क्या सेफगार्ड्स हैं? अरेस्ट करने के बाद देखिए, अगर वो 5 करोड़ के नीचे है तो जिस पार्टी ने उसको अरेस्ट करा है उसी को उसको बेल देनी है, अगर 5 करोड़ या उसके ऊपर का अमाउंट है आईटीसी फ्रॉड, तब उसे विद इन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, और मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करने के बाद तो जो पहली बात है 24 आवर्स में जो ट्रेवलिंग टाइम है वो रिमूव करना है, और इसके बाद उसका फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर के द्वारा भी होना है ना। इसमें एक चीज और, ड्यूरिंग दैट अरेस्ट आपके पास एक टाइम होता है, आप ऑफिसर को ये बोल सकते हैं आई वांट टू इंटीमेट एक्स पर्सन कि मुझे अरेस्ट कर लिया गया। मैं एक आदमी को इंटीमेट करना चाहता हूं कि मेरे को अरेस्ट कर लिया गया, सो दैट ही कैन वर्क ऑन माई बेल। अब आप कहेंगे कि साहब मेरे घर से मुझे उठाकर ले गए तो मेरे घर वालों को तो पता ही है, मैं इंटीमेट किसी को क्यों करूं? नहीं, इसका फायदा ये होता है कि आप अगर इस तरह के काम करेंगे तो उनको सब पता चल जाता है कि ये आदमी होशियार है, इसको चीजें पता है। सेकेंड थिंग, अगर वो ये चीज फॉलो नहीं कर रहे, अगर ये चीज फॉलो नहीं करते तो आपके बेल के राइट बढ़ जाते हैं। आप ये कह सकते हैं दैट आई वॉज नॉट प्रोवाइडेड बेनिफिट्स जो मुझे मिलने चाहिए थे, और ये मुझे अरेस्ट में प्रोसीजरल मिस्टेक हुई है, तो कई बार आप प्रोसीजरल मिस्टेक्स का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो यू शुड ऑलवेज, आपके घर वालों को पता है फिर भी आप किसी एक आदमी का ढूंढ कर बताइए कि मुझे इसको इंटीमेट करना है कि मेरे को अरेस्ट कर लिया गया, एंड इट इज डिपार्टमेंट ड्यूटी टू इंटीमेट दैट पर्सन। इसके बाद आप 24 आवर्स में आपको इंस्पेक्शन मेमो मिल जाना चाहिए, अरेस्ट मेमो मिल जाना चाहिए। नो, जब आपको अरेस्ट करा गया सारी चीजें लिखी गई हैं, नॉर्मली डिपार्टमेंट ये सारी चीजें टाइम पर काम नहीं करता, देयरफॉर योर एडवोकेट लॉयर शुड आफ्टर 24 आवर्स शुड अप्लाई फॉर अरेस्ट मेमो। नॉर्मली अगर ये कंप्लीट नहीं मिला तो भी आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ प्रोसीजरल एरर व्हाइल इन अरेस्ट। आप हमेशा ये अप्रोच करिए कि विद इन 48 आवर्स हमेशा एक डॉक्टर आपको विजिट करे। नो डॉक्टर वुड बी ए गवर्नमेंटल डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर होगा और विजिट करेगा, आपको लगेगा इसका क्या बेनिफिट है, 48 आवर्स में डॉक्टर आएगा, मुझे क्या बेनिफिट है? आपको 2 बेनिफिट है, एक तो वो किसी थर्ड पर्सन से मिल रहे होंगे, और उनके साथ कस्टडी में मारपीट होने के चांस कम होते हैं अगर डॉक्टर बार बार आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर गलत रिपोर्ट नॉर्मली नहीं देगा। अगर बिल्कुल ही खराब हालत है या ज्यादा पीट दिया गया तो उसको चोट के निशान वगैरह लिखकर देने होंगे, एंड देन यू कैन अप्रोच फॉर अ बेल। तो आपका जो भी पर्सन अंदर है उसके सेफ गार्ड के लिए यू शुड ऑलवेज अप्रोच फॉर 48 आवर ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन एवरी 48 आवर्स। Now what are the bail provisions? अरेस्ट हो गए, बेल कैसे मिलेगी? ये लाइन हमेशा याद रख लीजिए, बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। ये कोई व्यू नहीं है, डिस्क्रिशन नहीं है। 5 करोड़ के नीचे है तो जिसने अरेस्ट करा वही आपको बेल देगा ऑन बेल बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड। 5 करोड़ के ऊपर है तो फिर बेल देंगे आपको कोर्ट। नॉन बेलेबल का मतलब है कोर्ट बेल देगा, कोर्ट बेल देते हुए आप पर कंडीशंस लगाएगा, लेकिन बेल कोर्ट देगा। ये नहीं होगा कि कोल बेल नहीं मिलेगी। बेसिक रूल इज बेल, जेल इज एन एक्सेप्शन, और इंक्लूडिंग हाई प्रोफाइल इकोनॉमिक ऑफेंस के मैटर में भी बेल मिलती है, हाई प्रोफाइल में भी मिलती है। तो छोटा मोटा केस है, ये जो
फेक इनवॉइसेस का है कि बहुत बड़ा चार्ज नहीं है, लेकिन शोर ज्यादा मचा रखा। बेल क्यों दी जाती है? बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज पर्सनल लिबर्टी इज फंडामेंटल राइट। पर्सनल लिबर्टी इज फंडामेंटल राइट एंड जेल इज ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। 5 करोड़ के नीचे है उसी टाइम बेल मिलनी चाहिए जिसने अरेस्ट करा। 5 करोड़ के ऊपर है कोर्ट में बेल मिलेगी। अब मैं आपको ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस समझा देता हूं, फिर इसके बाद हम 10 मिनट में सारा 10-15 मिनट में सारा वाइंड अप हो जाएगा। देयर आर 2 केसेस। एक आदमी घर जा रहा था, नई गाड़ी ली थी, बच्चे के लिए बैट खरीद के ले गया। साइड से आते हुए एक बाइक वाले ने गलत घुमा दी, नई गाड़ी पर स्क्रैच पड़ गया। उसका हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ, उसने बच्चे के लिए जो बैट ले जा रहा था बैट निकाला और उस आदमी के मारने से वो आदमी मर गया। सेकंड है, एक आदमी अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, देखा यार मेरा इनकम टैक्स GST इस महीने का 3B की वजह से टैक्स पेमेंट बहुत ज्यादा आ रहा है, क्या करूं? उसने अपने एक जानकार को फोन करा कि भैया मेरा इस बार टैक्स बहुत ज्यादा हो रहा है, कुछ पैसे उधार दे दे। वो कहता है पैसे क्या करने, मैं इस आदमी का नंबर दे रहा हूँ, इस आदमी से बिल ले लें, वो डिटेल दे देगा फोन पर, वो डिटेल डाल दे, नेग्लिजिबल फीस में काम हो जाएगा, सरकार को क्यों पैसे देने, बिजनेस वैसे नहीं चल रहा और टैक्स बच जाएगा। चाय कॉफी पीते हुए उसने उस आदमी को फोन करा दिए हुए नंबर पे, फेक इनवॉइसेस ले लिए, टैक्स कम पे करा। अब ये दोनों आदमी बेल के लिए जज साहब के सामने खड़े। अब बताइए इनमें से ज्यादा ग्रेव ऑफेंस कौन सा है? चैट मैसेंजर पे केस 1 जिसके बैट मारने से आदमी मर गया, केस 2 जिसने GST कम पे करा। कौन सा ऑफेंस ग्रेव ऑफेंस है? किसकी बेल रिजेक्ट होनी चाहिए? किसकी बेल रिजेक्ट होनी चाहिए? केस 1, केस 2। तो RP भारद्वाज सर से केस 1 इसकी रिजेक्ट होनी चाहिए। Any other view? Any view? Case 1, case 2. The answer is case 2. Because case 1, thank you Praveen Upadhyay ji. Case 1 happened in a moment of heat. उसको कुछ सेकंड्स के लिए गुस्सा आया और उसने जो हरकत की उसकी वजह से कोई आदमी मर गया। He is not habitual offender. Case 2 सोची समझी साजिश है, very thoughtful attempt against economy of the country. They have raised war against the country. And these words are not mine words. Gravity of the offense. 3 चीजें चेक करनी है जब भी कभी बेल की बात हो गई। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल टेस्ट। टैक्स क्या है, केस क्या बन रहा है, एलिगेशंस क्या है, व्हाट आर डिपार्टमेंट ट्राइंग टू एलिगेट अगेंस्ट यू, व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस व्हेन दिस क्राइम हैपेंड एंड व्हाट इज द पनिशमेंट। अगर आप नेचर एंड ग्रेविटी प्रूव कर देते हैं कि कुछ खास नहीं है तो आपको बेल मिल जाएगी। सबसे पहले while granting bail कोर्ट क्या ध्यान रखेगा, व्हाट आर द नेचर ऑफ एक्यूशन अगेंस्ट द कल्प्रिट, व्हाट आर द सपोर्टिंग एविडेंस अगेंस्ट दिस। सपोर्ट में एविडेंस क्या है, भाई वो चार्ज कर रहे हैं फेक इनवॉइसेस का, तो सपोर्ट में एविडेंस क्या है, सिवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट कितना है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा है, देखिए 2 केस मेन होते हैं, अगर तो किसी केस में किसी क्राइम में लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट है या डेथ पेनल्टी है, उस केस में बेल नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस में कहा है, सलेचंद्रा वर्सेस CBI में,
कि अगर 7 साल से कम की सजा है तो ग्रेव ऑफेंस नहीं है, और जीएसटी में कितने साल की सजा है मैक्सिमम? 5 साल, तो ग्रेव ऑफेंस हुआ ही नहीं एज पर करंट लॉ पोजिशन. So there is no severity of the punishment. What is the character of the accused? Accused का character क्या है? जो आपका क्लाइंट होगा, he would have been a social worker also. He would have been say उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले होंगे, अपने व्यापार मंडल का हेड भी रहा होगा, बहुत कुछ चैरिटी के काम भी करता होगा. तो कैरेक्टर ऑफ द एक्यूज आप ये कहेंगे कि साहब हमारा जो क्लाइंट है या जो जिसके लिए हम बेल मांग रहे हैं वो एक अच्छे कैरेक्टर का आदमी है, और वो इस तरह का आदमी है ही नहीं किस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो. देन बेल देते वक्त कोर्ट के मामले में शेयर रहता है कहीं देने के बाद ये एब्सकॉन ना कर दे. तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सिक्योरिंग द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज? तो आपको ये बताना है कि उसका सारा बिजनेस इंडिया में है, जा कहाँ सकता है, फैमिली यहाँ रहती है, पढ़ रहे हैं, तुम मुझे से अगर वो बाहर आ गया तो क्या विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है? अब बताइए, विटनेस होता है कोई फेक इनवॉइसिंग केस में कि साहब मेरे सामने इसने इनवॉइस भर के लिखा था, मेरे सामने इसने इनवॉइसिंग नहीं. वोरा जी प्लीज आप म्यूट कर लीजिए अपने को, विनय वोरा जी. ओके जी. कहीं भी विटनेस की तो बात होती नहीं. विटनेस तो कोई होता ही नहीं ना कि फेक इनवॉइस में. ये तो ट्रांजेक्शन बेस्ड केस है. और ट्रांजेक्शन, अब जब बात करते हैं कि आप बाहर आ गए, कि कहीं ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई विटनेस को ट्रायल कर दिया, वो तो हो नहीं सकता, विटनेस नहीं है. एविडेंस को टेम्पर कर सकते हैं? नहीं, एविडेंस टेम्पर हो नहीं सकता. बिकॉज एविडेंस कहां पर है? एविडेंस क्या है? GSTR 1 एंड GSTR 3 भी. वो किसके पास है? दैट इज इन द सर्वर ऑफ द डिपार्टमेंट. और जब किसी आदमी को अरेस्ट करा जाता है तो जितनी चीजें उसके पास होती हैं वो सारी अरेस्ट करके, वो सारी सीज करके ले जाते हैं. तो जब किताबें और जो बिल्स हैं वो पर्सन के पास है नहीं, बिल्स की वैल्यू कुछ भी नहीं है अगर आपके GSTR 1 और 3B में नहीं है. तो कहीं से भी विटनेस इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, एविडेंस टेम्पर नहीं हो सकता. कैरेक्टर बहुत अच्छा है, सिवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट नहीं है. बात सिर्फ आती है सपोर्टिंग एविडेंस डिपार्टमेंट के पास क्या है. रीजनेबल पॉसिबिलिटी, ऑफ कोर्स आपका क्लाइंट के भागने वाला नहीं है. YS जगनमोहन रेड्डी वर्सेस CBI, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा economic offense are deep-rooted conspiracies involving huge loss to the public. They are serious threat to financial health of the country. ये कहकर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इसकी बिल रिजेक्ट करी, और बाद में फिर हायर बेंच ने इसको बिल दे दी. इसकी बिल रिजेक्ट होने से इस आदमी ने इतना पॉलिटिकल माइलेज लिया, ये बताकर कि मेरे को जबरदस्ती जेल में रखा जा रहा है, कि आज ये पर्सन आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है. टुडे YS जगनमोहन रेड्डी इज चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड ये जजमेंट उनके केस में आया था. उसमें कहा गया दैट वी कैन नॉट गिव बेल टू दिस पर्सन बिकॉज ही इज इन्वॉल्वड इन ह्यूज लॉस टू द पब्लिक फंड्स व्हिच इज सीरियस थ्रेट टू फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंट्री. संजय चंद्रा वर्सेस CBI, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनी ऑफेंस which has punishment of less than 7 years is not grave. तो सीरियसनेस माना ही नहीं, सीवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट है नहीं. हमारे केस में GST में मैक्सिमम 5 साल की सजा है, therefore बेल 60 डेज में मिल जानी चाहिए. There was third case, P. Chidambaram versus डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, सुप्रीम कोर्ट. INOX मीडिया का स्कैम था, टीवी पर रोज चलता था. जब बेल के लिए अप्लाई करा तो उन्होंने कहा व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द एक्यूज. यू कैन ऑलवेज यूज दिस थिंग फॉर योर क्लाइंट ऑल्सो. आपका जो एक्यूज है उसका बैकग्राउंड क्या है? उन्होंने कहा साहब ये तो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं 2 बार इंडिया के, करंट में MP है. बोले केस क्या है? बोले सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट क्या? बोले कुछ भी नहीं है. जिस केस में अरेस्ट करा गया था, उन्होंने कहा जितने पैसों की रिश्वत के लिए इन्हें अरेस्ट करा जा रहा है वो इनकी मंथली इनकम से भी कम है. इट्स नॉट अ सीरियस चार्ज. सिवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट, बोले सजा कितने दिन की? बोले 7 दिन की सजा. देन व्हाई यू आर डिनाइंग बेल? शुड गिव बेल.
ऐसे ही आपको भी अपने क्लाइंट के केस इसी तरह प्रेजेंट करना है। टेम्परिंग ऑफ द एविडेंस, मैंने आपको बताया कि एविडेंस है ही नहीं, सारे डिपार्टमेंट के पास है, टेम्परिंग ऑफ द एविडेंस हो ही नहीं सकता। Now these are two cases. One is of state of Maharashtra versus Naimal Punji Shah. This is Supreme Court. And second of Dhirinder Singh, High Court हरियाणा, जिन्होंने कहा कि जब अरेस्ट करा तो सारे डॉक्यूमेंट्स किसके पास हैं? All the documents are with डिपार्टमेंट। अगर डॉक्यूमेंट सारे डिपार्टमेंट के पास है तो फिर आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। Now before saying thank you, I have to share one more thing. I have to show one more thing to you. Stop sharing screen. Just give me a second. मैं एक चीज और दिखा देता हूँ। मैं एक लास्ट चीज देख लीजिए। एक ये भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है अभी आपके इसको कवर करने के लिए। उन्होंने कहा कि आप जीएसटी पोर्टल पर जाइए, आप अपना नाम नंबर डालिए, नाम नंबर डालिए, पैन नंबर डालिए। बेसिकली पैन से आप सर्च कर लीजिए कि आपके पैन के बेस पर कितने रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई रजिस्ट्रेशन बिना आपकी मर्जी के या आपका इनवॉइस का गलत, पैन का गलत यूज करके हो रखा है, तो उन्होंने यहीं पर फैसिलिटी दे रखी है, हाउ टू इंटीमेट द डिपार्टमेंट कि मेरी जो पैन है उसका मिसयूज हुआ है, सो दैट someone doesn't misuse your pen। कई बार लोग कहते भी हैं कि साहब मेरे पेन के बेस पर किसी और ने रजिस्ट्रेशन ले लिया, मैं तो कल्प्रिट था ही नहीं। तो वो भी आप इस तरह हेल्प ले सकते हैं। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। whatever the questions are, बहुत इंटरेक्टिव सेशन था और सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं जुड़े रहे। कोई भी अपने को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। विनय बोरा जी, वरुण नारनोली जी, और भी कोई भी, राठौर जी हैं, हरीश कुमार जी हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रदीप जी, आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हेलो सर, बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन में नोटिस आते हैं और हम लोग हियरिंग अटेंड करते हैं या जो भी सिचुएशन है, उसका क्लोजर हम कैसे इंश्योर करें? जी, हियरिंग अटेंड करते हैं, उसके बाद उसका क्लोजर हम कैसे इंश्योर करें कि भाई किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ठीक है, वो तो once you receive notices for this, you submit your reply and you can cross check on the file itself। प्री शो कॉस्ट नोटिस आएगा आपको। देखिए, जीएसटी लॉ में 3 तरह से काम चलता है। फर्स्ट इज प्री शो कॉस्ट कंसल्टेशन, देन शो कॉस्ट, और तीसरा होता है अपील। तो ये पहले जो नोटिस आता है नॉर्मली आपको प्री शो कॉस्ट कंसल्टेशन। प्री शो कॉस्ट कंसल्टेशन में आपको ऑर्डर नहीं मिलता, शो कॉस्ट के बाद आपको ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर आपके फेवर का तो क्लोज हो गई, ऑर्डर आपके फेवर का नहीं है तो फिर आपको अपील करनी पड़ेगी। अब बेसिकली जैसे एक हमारे पास एक केस हुआ, उसके अंदर वही फेक इनवॉइस का केस था। तो जो हमारे क्लाइंट ने क्लेम की हुई थी वो सपोज करो 8 लाख की फिगर क्लेम की हुई थी, लेकिन जो पोर्टल पे शो हो रही थी वो 12 लाख की हो रही थी। तो वो बोलते हैं जी 12 लाख रिवर्स करो। हमने उनको बोला कि भाई 8 लाख ही तो रिवर्स कराओगे, आप 12 कैसे रिवर्स करा लोगे जब मैंने क्लेम ही 8 लाख किया है। तो अब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि नहीं, वो कह रहे जी 12 लाख पर है, इसका मतलब आपने यूटिलाइज किया है। उसको कैसे कन्विंस करें? वो तो फिर आपको देखिए, वो तो आप उसको एफिडेविट के तौर पर दे दें और इनवॉइसेस की कॉपीज लगाइए, बोले जी इसने 12 लाख दिए, वो तो दी ही गलत है, हमने तो ली ही नहीं। वो सब तो हमने लेटर सब कुछ लिख दिया है, बट वो फिर भी पता नहीं बिल्कुल अनाड़ियों की तरह बिहेव करते हैं सर। अब समझ ही नहीं आता क्या बोलूं। देखिए क्या है,
फेक इनवॉइसेस का इतना ज्यादा शोर मचा रखा है इन्होंने कि आज की डेट में नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में भी दिक्कत आ रही है, या जो चल रहे हैं उन्हें भी नोटिस आ रहे हैं। तो डिपार्टमेंट को अपने हिसाब से करने दीजिए, आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो कमिश्नर अपील से भी नहीं मिलेगा इस केस में। अब केस आपका दिल्ली का है या आसपास का है? सर हम लोगों ने जो उसमें रिवर्स किया है ना, हमने अंडर डिस्प्यूट रिवर्स किया है विद द रिमार्क ठीक दैट है। विद द कि भी हमें जो वी केम टू नो दैट द फॉर्म इज अ फेक फॉर्म, बट वी हैव क्रॉस चेक थ्रू आवर सोर्सेज दैट इट इज अ जेन्युइन ट्रांजैक्शंस, and since on the pressure made by the department we are reversing for the mental fees with this remark, and आपने once रिमार्क से it is proved that the form is genuine, we will get the we'll take the benefit back. मैं आपसे क्या कह We रहा हूँ, put that ये जो remark in आपने, DRC 03. मेरी बात सुनिए, ये जो आपने लिया है that you have reversed under the protest, basically you have Yes. reversed it under the protest. जो थर्ड FAQs आए हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के, उसमें उन्होंने कहा है कि हम अंडर द प्रोटेस्ट वाली कंडीशंस ही रिमूव कर रहे हैं। Now this under the protest condition has been removed from GST laws through a FAQ. अब FAQ में दिया हुआ अंडर द प्रोटेस्ट वैलिड है नहीं वैलिड है? I personally feel department is not right on removing age on tradition of payment or reversal under protest. So I stand with you that you have reversed under a protest. I agree with you. But department can any day say कि भैया हमने FAQ में लिख रखा था, आप अंडर द प्रोटेस्ट ये सब नहीं कर सकते। Then it becomes a matter of litigation कि जिसमें आपको आगे लड़ाई लड़नी पड़ सकती। That's correct. That's correct. ठीक है सर, thank you sir. और किसका कोई क्वेश्चन हो इससे पहले कि फॉर्मली थैंक करें स्पीकर का? So thank you very much, Abhishek Raja ji. It was really wonderful session. सर बहुत ही अच्छा सेशन रहा। सर एक सेकंड देखिए, बस एक सेकंड। हाँ प्लीज प्लीज। दिस कुछ आप दिखाना चाह रहे थे स्लाइड पर? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि वैलिडिटी ऑफ पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट पर प्रदीप जी, मैं आपको अलग से बात कर लूंगा। मैंने एक वीडियो भी करा था ऑन दिस इशू। ठीक है सर, I'll get it. I will connect with you, sir. Thank you, sir. Thank you. ठीक है। Thank you sir. So over to Bhardwaj ji for final vote of thanks. सर one more request, आप ये स्लाइड एक बार शेयर। सर स्लाइड शेयर करने के लिए बोल रहे हैं, जो भी ये जो पीपीटी है। हाँ वो तो ग्रुप में डाल देंगे, हम टीम के पीसी ग्रुप में डाल देंगे, बाकी ईमेल पर भी शेयर हो जाएंगे। ठीक है। We are highly thankful, Abhishek Raja ji, for this wonderful deliberation in a very simple and understandable manner. We have been benefited a lot. Such things are rarely discussed in our seminars. बहुत अच्छा लगा सर, and we would like to continue inviting you in future also. A lot of thanks to you for your wonderful delegation. I am also highly thankful to all the participants for making this event a success. It is very election time है, सब लोग इधर बिजी हैं, पार्टीज में शादियां भी बहुत ज्यादा चल रही हैं, उसके बाद भी आप लोगों ने टाइम शेयर किया और हमारे इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू वेरी मच। Abhishek ji, I want your permission to upload this recording of this seminar on our YouTube channel so that our members who have left out of us, they may get benefit from this. It would be an honor, sir. Thank you, sir. Thank you very much. The permission of all, I would like to formally enter. Thank you, Abhishek ji. Thank you. Thank you, Thank you, Bhardwaj. sir. Thank you. Thank you, Pradeep ji. Thank you, Bhagwan Singh ji. Thank you, sir. Thank you.